آج کی رات اس قدر بھیانک اور کالی ہوگی یہ میں نے اور میری ماں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جب رات کے پچھلے پہر ابا کے کمرے سے اچانک ایک عجیب سی گھٹی گھٹی آواز آئی، جیسے کوئی سانس لینے کے لیے تڑپ رہا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور بھاگتا ہوا ان کے کمرے کی طرف گیا۔ وہاں میری ماں پہلے سے موجود تھی اور ابا کے سینے کو زور زور سے دبا رہی تھی۔ ابا کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں اور ان کا رنگ تیزی سے نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور ہاتھ پاؤں یوں اکڑ رہے تھے جیسے انہیں کوئی شدید دورہ پڑا ہو۔ میری ماں کی چیخیں رات کی خاموشی کو چیر رہی تھیں اور وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ جاؤ اپنے چاچا کو بلا کر لاؤ، لیکن میں اس منظر کو دیکھ کر پتھر کا ہو چکا تھا۔ میرا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری آنکھیں یہ سب دیکھ رہی تھیں لیکن میرا دماغ اس خوفناک حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو ابا بالکل ٹھیک ٹھاک میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ میں بے بسی سے بس انہیں تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک ابا کا جسم ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ ڈھیلا پڑ گیا اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ماں نے ایک دلخراش چیخ ماری اور ان کے سینے پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں اب بھی وہیں دروازے کی چوکھٹ پر بت بنا کھڑا تھا۔ میرے اندر جیسے کوئی احساس ہی باقی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھ محلے کے لوگوں کی آوازیں اور شور سنائی دینے لگا۔ شاید ماں کی چیخوں نے انہیں جگا دیا تھا۔ کوئی مجھے بلا رہا تھا، کوئی مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا، لیکن مجھے کسی کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لوگ ابا کے جسم کے گرد جمع تھے اور انہیں سیدھا کر رہے تھے۔ پھر اچانک بھیڑ کو چیرتے ہوئے چچا اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ابا کی آنکھیں بند کیں اور ان کے چہرے پر چادر ڈال دی۔ چچا کا چہرہ میرے سامنے تھا، وہ کچھ بول رہے تھے، لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مجھے کوئی خاص تاثر نظر نہیں آیا، بس ایک سنجیدگی تھی، لیکن میرا دماغ اس قدرے صدمے میں تھا کہ میں نے ان کے رویے پر کوئی غور ہی نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے انہیں ابا کے سرہانے پڑی پانی کی بوتل اٹھاتے اور اپنی چادر کے نیچے چھپاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس وقت مجھے یہ حرکت بالکل معمول کی لگی، کیونکہ میرا سوچنے سمجھنے کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ مجھے بس یہ لگ رہا تھا کہ وہ کمرہ سمیٹ رہے ہیں۔ میری آنکھیں کھلی تھیں اور میں ہر چیز دیکھ رہا تھا، لیکن میرا ذہن اس اندھیرے غار میں قید ہو چکا تھا جہاں کوئی روشنی نہیں پہنچتی۔ صبح کا سورج نکلا تو گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ محلے کی عورتیں جمع ہو چکی تھیں اور میری ماں کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ماں ہوش میں آتی اور پھر ابا کا نام لے کر بے ہوش ہو جاتی۔ وہ بار بار بازی کی ان یادوں میں کھو جاتی تھیں جب ابا ان کے لیے شہر سے لال چوڑیاں لایا کرتے تھے۔ وہ عورتوں کو رو رو کر بتا رہی تھیں کہ کیسے میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس بار فصل اچھی ہوئی تو وہ پکی چھت والا گھر بنوائیں گے۔ وہ بار بار ابا کی چارپائی کے پاس جا کر کہتے کہ اٹھو دیکھو، تم نے مجھے نیا گھر بنا کر دینا تھا، تم مجھے اس کچے مکان میں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ تمہیں یاد ہے پچھلی برسات میں جب چھت ٹپک رہی تھی تو تم نے ساری رات جاگ کر میرے سرہانے برتن رکھے تھے تاکہ مجھ پر پانی نہ گرے۔ تم تو میری اتنی فکر کرتے تھے، اب مجھے اس طوفان میں تنہا کیسے چھوڑ کے؟ ماں کی ان باتوں نے وہاں موجود ہر انسان کا کلیجہ چیر دیا تھا۔ میرا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں کونے میں سر چکائے بیٹھا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے ابا کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں چھوٹا تھا اور ابا مجھے اپنے کندھے پر بٹھا کر میلے میلے جایا کرتے تھے۔ وہ خود بھوکے رہ لیتے تھے لیکن میری ہر ضد پوری کرتے تھے۔ ایک بار مجھے تیز بخار تھا اور باہر شدید طوفان اور بارش تھی۔ ابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کئی میل پیدل چل کر مجھے ہسپتال لے گئے تھے۔ ان کی قمیض میرے آنسوؤں اور بارش سے بھیگ چکی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں ہونے دیا۔ ان کے سینے کی وہ گرمی مجھے آج بھی محسوس ہو رہی تھی جب میں سردی سے کانپ رہا تھا اور انہوں نے اپنی چادر میرے گرد لپیٹ دی تھی۔ آج ان کے بغیر یہ دنیا مجھے ایک ویرانے کی طرح لگ رہی تھی جس کا کوئی محافظ نہیں تھا۔ غسل دینے والے آ چکے تھے۔ جب میں نے ابا کے جسم کو آخری بار چھوا تو وہ برف کی طرح سرد تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ غسل دینے سے لے کر کفن پہنانے تک ہر کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ چچا ہر کام میں جلدی مچا رہے تھے، لیکن میرا دماغ اس تیزی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں تو بس ابا کے اس پرسکون چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اب ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہونے والا تھا۔ مجھے یاد آیا جب ابا کھیتوں میں سارا دن کام کر کے لوٹتے تھے تو ان کے ہاتھ کتنے کھردرے ہو جاتے تھے۔ وہ انہی کھردرے ہاتھوں سے میرے ماتھے کو چومتے اور کہتے بیٹا میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں تاکہ تم پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن سکو۔ جنازہ اٹھنے کا وقت آیا تو چچا نے اچانک دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔
वो अब्बा की चारपाई के पाए पकड़ कर रो रहे थे कि मेरे भाई के बगैर मैं कैसे जीऊँगा। लोग उन्हें दिलासा दे रहे थे कि मैंने भी चारपाई को कंधा दिया और हम जनाज़ा लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। कब्रिस्तान की वीरानी और वहाँ की खामोशी दिल को चीर रही थी। जब अब्बा को लहद में उतारा जाने लगा तो मेरा दिल चाहा कि मैं भी उस कब्र में कूद जाऊं और अब्बा के साथ ही दफन हो जाऊं। मनो मट्टी अब्बा के ऊपर डाली जा रही थी और मेरे अंदर कुछ टूट कर बिखर रहा था। लोग एक एक करके मट्टी डालते और फातिहा पढ़कर रुखसत होते जा रहे थे। चचा ने भी रोते हुए मट्टी डाली और फिर मुझसे गले मिलकर मुझे सब्र की तलकीन करने लगे। उनका गले मिलना मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बेजान लकड़ी मुझसे टकरा गई हो, लेकिन मैं इस सदमे में था कि मुझे कुछ अजीब ना लगा। आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान खाली होने लगा। सारे लोग जा चुके थे और शाम के साए गहरे हो रहे थे। मैं अब्बा की ताज़ा कब्र के सरहाने बैठा था और मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। मैं अपने अब्बा से आखिरी बार दिल की बातें कर रहा था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया। जब कुछ अंधेरा होने लगा तो मैंने भौचल कदमों के साथ वहां से जाने का फैसला किया। मैंने आखिरी बार कब्र की मिट्टी को छुआ और मुड़कर चलने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र कब्रिस्तान के दूसरे कोने पर पड़ी। वहां एक पुराने और घने दरख्त के साए में कोई खड़ा था। मैंने आंखें सुकेड़ कर गौर से देखा तो मेरे कदम वहीं जम के तो मेरे चचा थे, जो कब्रिस्तान से गए ही नहीं थे बल्कि वहां छुप कर खड़े थे। उनके हाथ में एक पर्ची थी और वह इंतहाई उजलत में उस पर कुछ लिख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी थी। वो बार बार इधर उधर देख रहे थे, जैसे उन्हें डर हो कि कोई उन्हें देख ना ले। उनकी इस हरकत ने मेरे अंदर तजस्सुस की एक आग भड़का दी। मेरा सुन हुआ दिमाग अचानक जाग उठा। मैं दबे कदमों उनकी तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिमाग हजारों सवालात में उलझा हुआ था कि आखिर चचा इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं और इस पर्ची पर ऐसा क्या लिख रहे हैं जो उन्हें इतनी जल्दी और छुप कर लिखना पड़ रहा है। मैं अभी उनसे कुछ फासले पर ही था कि मेरा पाँव एक सूखी टहनी पर आया और एक हल्की सी आवाज़ पैदा हुई। आवाज़ सुनते ही चचा ने बुरी तरह चूम कर मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उनकी आंखों में एक वाज़ेह खौफ नजर आया। उन्होंने इंतहाई तेज़ी से वो पर्ची मोड़कर अपनी शलवार की जेब में ठूंसी और एक लम्हे के लिए मुझे घूर कर देखा। उनकी आंखों में उस वक्त जो तासुर था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो चोरों की तरह वहां से खिसके और तेज कदमों से कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ भड़के। मैं भागकर उस जगह पहुंचा जहां वो खड़े थे। वहां कुछ नहीं था सिवाय दरख्त के खुश्क पत्तों के। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब्बा की मौत का गम एक लम्हे के लिए पीछे रह गया और एक खौफनाक हकीकत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मेरे दिमाग की वो धुंध जो सुबह से छाई हुई थी अचानक छट गई। मेरी आंखों के सामने गुजरे हुए पिछले चंद घंटों के मनाजर एक एक करके घूमने लगे। मुझे याद आया कि कैसे अब्बा के गले पर वो नीला निशान था जिसे चचा ने जल्दी से छुपा दिया था। मुझे याद आया कि कैसे चचा ने रात के इस पहर जब अब्बा तड़प रहे थे कमरे में आते ही सबसे पहले अब्बा के सिरहाने पड़ी पानी की बोतल को अपनी चादर में छुपाया था। मुझे याद आया कि गुस्ल के दौरान चचा कितनी जल्दी मचा रहे थे, जैसे वो किसी सबूत को मटाना चाहते हों। और फिर उनका वो जनाजे पर झूठा रोना, ये सारी कड़ियाँ मिलकर एक खौफनाक जंजीर बन रही थी। मेरा दिमाग अब हर चीज़ को प्रोसेस कर रहा था। चचा का रवैया शुरू से ही मशकूक था। उनकी हर हरकत में कोई ना कोई राज छुपा था। वो पर्ची क्या थी? उस पर क्या लिखा जा रहा था? और चचा ने मुझे देखकर उसे इतनी उजलत में क्यों छुपाया? वो खौफ जो उनकी आंखों में था वो किसी आम इंसान का नहीं बल्कि एक मुजरिम का था। मेरे अंदर एक आग भड़क उठी थी। मुझे यकीन हो गया कि अब्बा की मौत कोई तभी मौत नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश का सबसे अहम मोहरा मेरा अपना सगा चचा था। मैं उस सुनसान कब्रिस्तान में तनहा खड़ा था और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं और मेरी माँ एक ऐसे खतरनाक जाल में फंस चुके हैं जिसकी डोरें चचा के हाथ में हैं। मेरे कानों में अब्बा की वो बात गूंजने लगी कि बेटा अपनों पर भरोसा करना, लेकिन आज अपनों ने ही मेरा सब कुछ छीन लिया था। इस पर्ची का राज जानना अब मेरी जिंदगी का मकसद बन गया था, क्योंकि इस पर्ची में मेरे बाप की मौत और हमारी बर्बादी का सच छुपा था। मैंने कब्रिस्तान की तारीकी में अपने आंसू पोंछे और मेरे अंदर की बेबसी एक पुरअसरार गुस्से में बदल गई। अब्बा की मौत को गुजरे हुए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन हमारे घर पर छाई हुई उदासी और वीरानी की चादर दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। मेरी माँ की आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी थी और उनके चेहरे पर अचानक कई सालों की थकन और बढ़ापा वाज़ेह तौर पर
नज़र आने लगा था। मैं इन दिनों एक अजीब सी ज़हनी और क़ल्बी कशमकश में मुब्तला था। एक तरफ अब्बा के अचानक चले जाने का वो जानलेवा दर्द था, जिसने मेरी रूह को अंदर तक घायल कर दिया था, और दूसरी तरफ चचा की वो पुरइस्रार पर्ची थी, जिसने मेरी रातों की नींद हराम कर दी थी। रात भर मैं उस पर्ची और अब्बा की पुरइस्रार मौत के बारे में सोचता रहता और मेरा दम घुटने लगता। लेकिन ज़िंदगी किसी के जाने से रुकती कहाँ है। वक़्त का पहिया अपनी इस ज़ालिम रफ़्तार से चल रहा था। अब्बा का सबसे बड़ा ख्वाब मेरा कॉलेज जाना और पढ़ लिख कर एक बड़ा अफ़सर बनना था। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई और मेहनत मेरी पढ़ाई पर लगा दी थी। उनका वो पसीने से भरा चेहरा और मिट्टी में काम करके खुरदरे होने वाले हाथ मुझे बार-बार याद आते। जब वो रात को थक-हार कर लौटते और मेरे माथे को चूम कर कहते कि बेटा तू मेरा फ़ख्र है, तू ही मेरे इन खुरदरे हाथों का मान रखेगा। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो माँ पहले से जाग रही थी। उन्होंने अपनी पुरानी लोहे की पेटी से मेरा कॉलेज का सफ़ेद यूनिफ़ॉर्म निकाला और उसे अपने काँपते हुए कमज़ोर हाथों से इस्त्री कर रही थी। उनके हाथों में एक अजीब-सी कँपकँपाहट थी। उनकी आँखों से आँसू मुसलसल गिरकर इस सफ़ेद कमीज़ पर लग रहे थे। मैं चुपचाप उनके पास गया और उनका हाथ पकड़ लिया। माँ ने मुझे अपने सीके से लगा लिया और फूट-फूट कर रोने लगीं। उनकी आवाज़ में इतनी बेबसी और दर्द था कि मेरा अपना दिल फटने लगा। वो रोते हुए कह रही थी कि बेटा, आज तेरे अब्बा ज़िंदा होते तो तुझे खुद अपने हाथों से तैयार करके कॉलेज छोड़ने जाते। उन्होंने तुझे इस सफ़ेद यूनिफ़ॉर्म में देखने के कितने ख्वाब सजाए थे। उनकी आवाज़ की लर्ज़िश मेरे वजूद को चीर रही थी। मैंने अपने आंसू बमुश्किल रोके और माँ के गले लगकर उनसे वादा किया कि मैं अब्बा का हर ख्वाब पूरा करूँगा, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। माँ ने मुझे नाश्ता करवाया और मेरे माथे पर बोसा देकर मुझे ढेरों दवाएं देते हुए घर से बाहर भेजा। बाहर मेरे चचा का बेटा हमीद अपनी मोटरसाइकिल पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। हमीद से मेरी बचपन की दोस्ती थी। वो अपनी फितरत में बुरा इंसान नहीं था, लेकिन अपने बाप के रौब और खौफ के सामने उसके बोलने की कभी हिम्मत नहीं होती थी। मैं भारी कदमों के साथ चलता हुआ उसके पास पहुंचा तो उसने मेरी तरफ एक हमदर्दी और दुख भरी नज़र से देखा और बिना कुछ कहे मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। हम दोनों कॉलेज की तरफ निकल पड़े। रास्ते में सुबह की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और मैं आंखें बंद किए अब्बा के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो मुझे बचपन में अपने साइकिल के आगे बिठाकर शहर की सैर करवाते थे। मोटरसाइकिल की आवाज़ के साथ-साथ मेरे दिमाग में चचा का वो खौफज़दा चेहरा और अंधेरे कब्रिस्तान में लिखी जाने वाली वो पर्ची मसलसल घूम रही थी। न जाने वो मंज़र ज़हन के पर्दे पर जम सा गया था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज का दिन मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी में बेबसी और मजबूरी का एक बहुत बड़ा तूफ़ान लाने वाला है। अभी हम कच्चे रास्ते से गुजरकर गांव की मेन सड़क तक पहुंचे ही थे कि अचानक सामने से चचा अपनी मोटरसाइकिल पर तेजी से आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने दूर से ही हमीद को गुस्से से हाथ का इशारा किया और मोटरसाइकिल रोकने को कहा। हमीद ने घबराकर ब्रेक लगाई और हम दोनों वहां रुक गए। चचा का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उनकी आंखों में वही मक्कारी और लालच नाच रहा था जो मैंने उस रात कब्रिस्तान की तारीकी में देखा था। वो अपनी मोटरसाइकिल से उतरे और तेज़ कदमों से हमारे पास आए। मैंने अदब से उन्हें सलाम किया, लेकिन उन्होंने मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं दिया और इंतहाई गुस्से और हकारत से मेरी तरफ घूरने लगे। उनकी नज़रें मेरे सफ़ेद यूनिफ़ॉर्म पर जमी हुई थीं। उनके होंठों पर एक अजीब-सी तंज़िया मुस्कुराहट थी। उन्होंने अचानक अपना भारी हाथ बढ़ाया और मेरी कमीज़ का कॉलर सख्ती से पकड़ लिया। मेरी समझ में नहीं आया कि ये अचानक क्या हो रहा है। हमीद भी घबरा गया और उसने डरती हुई काँपती आवाज़ में पूछा कि अब्बू क्या हुआ? आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? इसने कुछ नहीं किया। चचा ने हमीद की बात का जवाब देने की बजाय एक ज़ोरदार झटका देकर मुझे मोटरसाइकिल से नीचे मिट्टी में गिरा दिया और चिल्लाते हुए बोले, ये नवाबज़ादा अब कॉलेज जाएंगे। इनके बाप ने तो मेरे सर पर लाखों का कर्ज छोड़ा है और ये साहब यहाँ नवाबों की तरह पढ़ाई करेंगे। उनकी आवाज़ इतनी ऊंची और करखत थी कि आसपास से गुजरने वाले लोग भी रुककर हमें हैरानी से देखने लगे। मेरा चेहरा शर्म, बेइज्जती और दुख से लाल हो गया। मैंने ज़मीन से उठते हुए अपने कॉलर को ठीक किया और इंतहाई ज़ब्त से उनसे कहा कि चचा, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे अब्बा ने तो सारी ज़िंदगी कभी किसी से एक पैसा भी उधार नहीं लिया। आप मुझ पर इस तरह सरेआम हाथ क्यों उठा रहे हैं? चचा ने एक कहकहा लगाया जो किसी ज़ालिम भेड़िए की आवाज़ जैसा था और बोले, तेरे बाप ने पिछले महीने मुझसे अपनी बीमारी का बहाना करके और इस बेकार की ज़मीन के नाम पर कर्ज लिया था।
और अब जब वो मर गया है तो उसके हिस्से का काम और वह भारी कर्ज कौन उतारेगा? आज से तेरा ये कॉलेज जाना और नवा भी बंद है। चुपचाप खेत में जा और मजदूरों की तरह काम शुरू कर। तेरे बाप के मरने से मेरा दिया हुआ कर्ज खत्म नहीं हो जाता। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स जिसने कुछ दिन पहले मेरे बाप के जनाजे पर झूठे आंसू बहाकर लोगों की हमदर्दियां समेटी थी, आज अचानक इस कदर जालिम और शफाक कैसे बन गया। मेरी आंखों के सामने कब्रिस्तान का वो मंजर आ गया जब वो पर्ची पर कुछ लिख रहे थे। मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि इस पर्ची पर ज़रूर कोई ऐसा झूठ लिखा गया था जिसे वो कर्ज बनाकर हमारी ज़मीन हथियाना चाहते थे। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मेरे अब्बा ने कोई कर्ज नहीं लिया। आप खुद को मेरा चचा कहते हैं और अपने सगे भतीजे को इस तरह सड़क पर जलील कर रहे हैं। ये सुनना था कि चचा ने आगे बढ़कर मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे कानों में सई सई की आवाज़ें आने लगीं और मेरे होठों से खून निकलकर मेरी थोड़ी पर गिरने लगा। हमीद जल्दी से आगे आया और उसने रोते हुए चचा को पीछे की तरफ धकेला। अब्बू, खुदा के लिए ये क्या कर रहे हैं? आस-पास के सारे लोग देख रहे हैं। इसके बाप की अभी मट्टी भी नहीं सूखी और आप इस पर जुल्म कर रहे हैं। चचा ने हमीद को भी ज़ोर से धक्का दिया और उसे कहा कि तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। ये बाप बेटा मिलकर मुझे बर्बाद करना चाहते थे। आज से ये कॉलेज नहीं जाएगा। बस मैंने कह दिया सो कह दिया। चचा ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और धूल उड़ाते हुए वहां से निकल गए। मैं कच्ची सड़क पर अकेला खड़ा था। मेरे आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे और मेरी रूह छलनी हो चुकी थी। हमीद मेरे पास आया और उसने नम आंखों से मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने चुपचाप खुद को संभाला और वहां से भारी कदमों के साथ वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। सूरज की गर्मी और मेरे अंदर भड़कती हुई आग मुझे अंदर से जला रही थी। रास्ते पर लोग मुझे अजीब और तरस भरी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि मेरा उजला सफ़ेद यूनिफॉर्म मिट्टी में अटा हुआ था और मेरे चेहरे पर थप्पड़ का सुर्ख निशान और होठों पर खून जम चुका था। मैं जब बोझल कदमों से घर पहुंचा तो माँ सहन में बर्तन धो रही थी। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, उनके हाथ से बर्तन छूटकर ज़मीन पर गिरा और टूट गया। वो दीवानी सी होकर भागती हुई मेरे पास आई। उन्होंने मेरे गिर्द आलूद चेहरे को अपने दोनों कपकपाते हाथों में लिया और ज़ारो कतार रोने लगी कि मेरे यतीम बच्चे को किसकी नज़र लग गई। ये क्या हाल बना लिया अपना। तू तो कॉलेज गया था। यह कौन कैसा है? मैं मजीद जब्त न कर सका और माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने हिचकियाँ लेते हुए माँ को सब कुछ बता दिया जो रास्ते में हुआ था। चचा की वो कड़वी बातें, वो झूठा कर्ज, वो थप्पड़ और वो सरेआम होने वाली बेइज्जती, सब कुछ माँ को बता दिया। मेरी बात सुनकर माँ का चेहरा दुख और बेबसी की तस्वीर बन गया। उनकी आंखों से आंसुओं का एक नया तूफान बह निकला। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गईं और अपना सर पकड़ कर रोने लगीं। मैंने सोचा था कि शायद माँ गुस्से में आकर चचा के घर जाएंगी और उनसे लड़ेंगी, लेकिन माँ के चेहरे पर गुस्से की बजाय एक शदीद किस्म की बेबसी और मजबूरी थी। उन्हें एहसास हो गया था कि अब उनका मुहाफ़िज़ इस दुनिया में नहीं रहा और अब बेवा और यतीम की इस ज़ालिम मुआशरे में कोई औकात नहीं होती। उन्होंने अपने आंसू पोंछे मुझे ज़मीन से उठाया और मेरे होंठों से खून साफ करते हुए नहायत दुखी लेकिन मसलहत भरी आवाज़ में बोली, बेटा, हम गरीब और बेआसरा लोग हैं। हम इन ताकतवरों से लड़ नहीं सकते। तेरे चचा की नीयत शुरू से ही ख़राब थी। वो हमारी ज़मीन हड़पना चाहता है, लेकिन हम लड़कर अपना हक नहीं ले सकते। अगर मैंने उससे झगड़ा किया तो वो पंचायत और मोहल्ले वालों के सामने हमें मज़ीद ज़लील करेगा और शायद हमें इस घर से भी निकाल दे। माँ ने अपने आंसुओं को अंदर उतारा, अपने दुपट्टे से अपना चेहरा साफ किया और मेरा हाथ पकड़कर इंतहाई आजिज़ी और मजबूरी के आलम में चचा के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में माँ बार बार मुझे सब्र की तलकीन कर रही थी कि बेटा, तू गुस्सा मत करना, हमें अपना हक मसलहत और मिन्नत समाज से लेना होगा। चचा का घर हमारे घर से थोड़ी ही दूर था। जब हम वहाँ पहुँचे तो चचा अपने सहन में चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे और उनकी बीवी पास बैठी कुछ काम कर रही थी। माँ ने जाते ही घर का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और सर झुकाकर अंदर दाखिल हुई। चचा ने हमारी तरफ एक मगरूर और तंजिया नज़र डाली। माँ सीधी चचा के पास गईं और उनके कदमों के पास बैठकर हाथ जोड़कर रोने लगीं। उनकी इस आजिज़ी को देखकर मेरे अंदर आग लग गई, लेकिन माँ ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। माँ रोते हुए चचा से मिन्नत करने लगी, भाई साहब, मेरा सुहाग उजड़ गया है, मेरा घर बर्बाद हो गया है। आप इस यतीम पर रहम करें। उसने आपका क्या बिगाड़ा है? आप इस पर सरेआम हाथ क्यों उठा रहे हैं?
चचा ने इंतहाई तकब्बुर से हुक्के का कश लगाते हुए कहा, भाभी, मैंने कोई जुल्म नहीं किया। तेरे शौहर ने मुझसे कर्ज लिया था और वो पैसे तो मुझे हर हाल में चाहिए, वरना मैं ज़मीन का 1 इंच भी तुम्हें नहीं दूंगा। माँ ने हाथ जोड़कर इंतहाई बेबसी से कहा, भाई साहब, मेरे शौहर ने कभी कोई कर्ज नहीं लिया। आप खुद जानते हैं कि वो कितने खुददार इंसान थे। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो हम आपसे नहीं लड़ेंगे। हम कमज़ोर लोग हैं, हमारा कोई आसरा नहीं बचा। आप हमारी ज़मीन अलग कर दें, हम आपका वो नाम निहाद कर्ज भी इसी ज़मीन में से काट कर आपको दे देंगे। बस हमें हमारा हक दे दें, ताकि मैं अपने यतीम बच्चे का पेट पाल सकूं। चचा की बीवी जो ये सब कुछ देख रही थी, उसने भी तंज करते हुए कहा, हाय हाय भाभी, आप रोकर क्या हमदर्दियां बटोर रही हो? कर्ज लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा। माँ ने उनकी तंजिया बातों का कोई जवाब नहीं दिया और बस रो रो कर चचा से ज़मीन की तकसीम की मिन्नत करती रही। चचा को अंदाज़ा हो गया कि माँ अब बगावत नहीं करेगी, बल्कि उसकी शराइत मानने पर मजबूर है। उसने मक्कारी से अपने चेहरे पर एक नकली संजीदगी लाई और बोला, ठीक है भाभी, अगर तुम रो रो कर इतनी मिन्नतें कर रही हो तो मैं अपने भाई के नाम पर तरस खा लेता हूँ। कल सुबह पंचायत के लोग और पटवारी को बुलाकर ज़मीन की तकसीम कर लेते हैं और उसी वक्त मेरा कर्ज भी कट जाएगा। माँ ने सर झुकाकर कहा, ठीक है भाई साहब, हम कल सुबह पंचायत के सामने अपना हिस्सा ले लेंगे। माँ ने आखिरी बार उनकी तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़कर आजिज़ी से वापस घर आ गई। रात भर हम दोनों सो ना सके। माँ बार बार मेरे थप्पड़ वाली जगह पर पट्टी रखती और अब्बा को याद करके खामोशी से आंसू बहाती रहीं। मैंने माँ को बताना चाहा कि कब्रिस्तान में मैंने चचा को क्या करते देखा था, लेकिन मुझे लगा कि अभी माँ पहले ही बहुत सदमे और बेबसी में हैं। उन्हें मज़ीद परेशान करना ठीक नहीं होगा। मैंने वो राज अपने अंदर ही दबा लिया और खामोशी से किस्मत के इस खेल को देखने लगा। अगले दिन सुबह सुबह गांव के पंचायत के बड़े लोग और पटवारी हमारी कच्ची बैठक में जमा थे। चचा अपने हाथ में ज़मीन के कागजात पकड़े पूरे एतमाद और गरूर के साथ बैठे थे, जैसे उन्होंने पहले से ही कोई बहुत बड़ा और खौफनाक मंसूबा बना रखा हो। पटवारी ने ज़मीन का पुराना नक्शा खोला और तकसीम का अमल शुरू किया। अब्बा और चचा की मुश्तरका ज़मीन दो हिस्सों में बढ़ती थी। एक हिस्सा फ्रंट पर था, जो मेन सड़क के बिल्कुल साथ रखता था। यह ज़मीन इंतहाई ज़रख़ेज़ थी और इसकी कीमत मार्केट में करोड़ों रुपए थी। यहाँ आसानी से कोई बड़े पैमाने पर कारोबार, फैक्ट्री या पेट्रोल पंप बनाया जा सकता था। जबकि दूसरा हिस्सा बिल्कुल पिछली तरफ था, जो दूर पहाड़ी इलाके के साथ लगता था। वो ज़मीन बिल्कुल बंजर, कटी फटी और पथरीली थी। वहाँ फसल उगाना किसी अजाब से कम नहीं था और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी कच्चा और ख़राब था। पटवारी ने नक्शा दिखाते हुए पंचायत से कहा कि कानून के मुताबिक ये ज़मीन दोनों भाइयों के वर्सा में बराबर तकसीम होगी, यानी आधी फ्रंट वाली और आधी पिछली वाली। चचा ने फौरन आगे बढ़कर पटवारी के कागजात पर हाथ रखा और अपनी मक्काराना मुस्कुराहट के साथ बोला, पटवारी साहब, फ्रंट वाली ज़मीन तो मैंने पहले ही कानूनी तौर पर अपने नाम करवा ली थी। आप ज़रा उन कागजात में गौर से देख लें। मेरे भाई ने खुद अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से फ्रंट वाली ज़मीन मेरे नाम की थी, क्योंकि वो मुझसे अपनी बीमारी और घर के खर्चे के लिए लाखों का कर्ज ले चुका था और इसके इवज़ उसने पिछली ज़मीन पर अपना हिस्सा रख लिया था, ताकि जब वो कर्ज उतारे तो पिछली ज़मीन उसे मिल जाए। लेकिन अब वो मर चुका है और कर्ज अभी बाकी है, इसलिए फ्रंट वाली ज़मीन मुकम्मल तौर पर मेरी है और पिछली बंजर ज़मीन भाभी और इस लड़के की है। ये सुनते ही वहाँ बैठे हर शख्स के होश उड़ गए। मेरी माँ के पाँव तले से गोया ज़मीन निकल गई। उनका मसलहत का सारा खौल टूटता हुआ महसूस हुआ। मैंने आगे बढ़कर वो कागज़ देखे तो उन पर अब्बा के अंगूठे का निशान लगा हुआ था। मेरे दिमाग में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। उसने बहुत बड़ी गेम खेली थी। उसने रातों रात पंचायत के वडेरों और पटवारी को भारी रिश्वत देकर और इसी फर्जी कागज़ पर अब्बा के अंगूठे को कानूनी शक्ल देकर फ्रंट वाली कीमती ज़मीन पहले ही अपने नाम करवा ली थी और अब पिछली वो सस्ती और बंजर ज़मीन जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो हमारे माथे मार रहा था। माँ से ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त ना हुई और उन्होंने रोते हुए पंचायत के लोगों के आगे हाथ जोड़ दिए और रो रो कर मिन्नतें करने लगी कि खुदारा इंसाफ करो। मेरे शौहर ने कभी ऐसी ज़मीन तकसीम नहीं की। उसने कोई कर्ज नहीं लिया था। ये शख्स झूठ बोल रहा है। इस बंजर ज़मीन में तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता। मेरा बेटा अपना मुस्तकबिल कैसे बनाएगा? वहाँ हम तो भूखे मर जाएंगे। आप लोग खुदा का खौफ करें। चचा ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए लोगों से कहा, देखें भाभी, सदमे में हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, मैं उनका हक थोड़ी मार रहा हूँ। पिछली ज़मीन तो दे रहा हूँ और कर्ज भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं भाई के यतीम बच्चे पर रहम कर रहा हूँ। पंचायत के वडेरे जो पहले से ही चचा की रिश्वत खा चुके थे और उसकी ताकत से डरते थे,
انہوں نے نہایت بےحسی سے فیصلہ سنا دیا کہ قانونی کاغذات کے مطابق اور انگوٹھے کی تصدیق کے بعد فرنٹ والی زمین چچا کی ہی بنتی ہے اور پچھلی بنجر زمین بھابھی اور بھتیجے کی ہے۔ فیصلہ اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ماں نے روتے ہوئے ان کے پاؤں تک پکڑنے کی کوشش کی لیکن کسی نے ایک نہ سنی اور وہ ظالم لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ چچا مجھے ایک فتح یاب اور مکارانہ مسکراہٹ دے کر اپنے لوگوں کے ساتھ ہنستا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ میں وہاں خاموش کھڑا اس بنجر زمین کے کاغذات کو گھور رہا تھا جو چچا نے میری ماں کے منہ پر مارے تھے۔ ماں روتے ہوئے بے بسی سے زمین پر گر پڑی۔ ان کی آنکھوں میں دنیا کا سب سے بڑا دکھ اور مجبوری تھی۔ میں نے انہیں زمین سے اٹھایا تو انہوں نے روتے ہوئے میرے سینے سے لگ کر کہا کہ بیٹا ہم ہار کے، یہ ظالم دنیا غریبوں کا گوشت کھا کر بھی بھوکی رہتی ہے۔ اس دنیا نے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے اور ہمارا کوئی سہارا نہیں بچا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہیں دلاسا دیا کہ ماں آپ پریشان نہ ہوں، میں اس کچی اور بنجر زمین میں اپنا پسینہ بہاؤں گا، میں محنت کروں گا اور ابا کے قاتل کا چہرہ بے نقاب کروں گا۔ اس دن میں نے دل میں پتھر رکھ کر اپنے کالج کی کتابیں ہمیشہ کے لیے بند کر کے پرانی پیٹی میں رکھ دیں اور مٹی والے پرانے کپڑے پہن لیے تھے۔ اس وقت اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ وہ پچھلی سستی اور بنجر زمین جسے چچا نے بیکار سمجھ کر ہمیں دیا تھا اور اصل وہی زمین ہماری قسمت کا وہ بند دروازہ کھولنے والی تھی جہاں کروڑوں کا کھیل دفن تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور میری آنکھوں میں اس آنے والے کل کے خوف اور بے یقینی کی برف جمنے لگی تھی۔ اب میرا ایک ہی مقصد تھا کہ میں اپنی ماں کے آنسوؤں کا اور اپنے باپ کی موت کا بدلہ لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ کالج کی کتابیں ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے بعد میری زندگی کا ایک ایسا کٹھن اور تاریک باب شروع ہوا جس کی سختی نے میرے بچپن اور جوانی کو ایک ہی پل میں نگل لیا تھا۔ اور پچھلی زمین جسے چچا نے بنجر اور کٹی پھٹی کہہ کر ہمارے ماتھے مارا تھا وہ واقعی کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہاں کی مٹی اتنی سخت اور پتھریلی تھی کہ جب میں اس پر کدال چلاتا تو میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، جن میں کتابیں پکڑنے کی خواہش تھی اور ہڈیوں تک درد کی ٹیسیں اٹھتی سورج کی آگ برساتی گرمی میں۔ جب میں اس ویران زمین پر اکیلا کام کرتا تو مجھے اپنے ابا کے وہ الفاظ یاد آتے جب وہ کہتے تھے کہ میرا بیٹا کبھی دھوپ میں نہیں جلے گا، لیکن آج تقدیر نے مجھے اسی دھوپ میں لا کھڑا کیا تھا۔ میرے گھورے ہاتھ جو کبھی قلم پکڑتے تھے آج مٹی اور خون سے لت پت رہتے تھے۔ میری ماں دوپہر کے وقت ایک پرانے کپڑے میں روٹی اور پیاز باندھ کر میرے لیے لاتی تو مجھے اس حال میں دیکھ کر اپنا دوپٹہ منہ میں دبا کر خاموشی سے رونے لگتی۔ میں اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر اپنے درد کو چھپا لیتا اور مسکرا کر کہتا کہ ماں یہ زمین ایک دن سونا اگلے گی، آپ دیکھنا ہم دوبارہ خوشحال ہو جائیں گے۔ ماں میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرتی اور مجھے دعائیں دیتی۔ دن یوں ہی مشقت اور بے بسی کی چکی میں پس رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ مجھے دیکھ کر افسوس کرتے اور چچا کی مکاری پر باتیں کرتے، لیکن کوئی بھی ہماری مدد کے لیے آگے نہیں آتا تھا۔ چچا اپنی اس قیمتی فرنٹ والی زمین پر بڑی شان سے بیٹھا تھا اور اس نے وہاں ایک بڑا گودام بنانے کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ جب بھی وہاں سے گزرتا تو مجھے اس کڑی دھوپ میں پتھر توڑتے دیکھ کر ایک حقارت بری اور فاتحانہ مسکراہٹ دیتا۔ حمید بھی اب میرے پاس نہیں آتا تھا، شاید چچا نے اس پر سختی کر دی تھی۔ میں نے دن رات ایک کر کے اس بنجر زمین کے ایک چھوٹے سے حصے کو ہموار کیا اور وہاں کچھ سبزیاں اگانے کی کوشش کی، لیکن پانی کی کمی اور مٹی کی سختی کی وجہ سے وہ پودے بھی مرجھا گئے۔ میری امیدیں ٹوٹنے لگی تھیں۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید چچا سچ کہتا تھا کہ اس زمین پر گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگ سکتا اور ہم یہاں بھوکے مر جائیں گے۔ رات کو جب میں تھک ہار کر گھر لوٹتا تو میرا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا ہوتا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کو دور ہوتی، کیونکہ بند آنکھوں کے پردے پر مجھے بار بار چچا کا وہ خوفزدہ چہرہ اور وہ پرچی نظر آتی جو اس نے ابا کی تدفین کے بعد قبرستان کی تاریخی میں لکھی تھی۔ وہ پرچی میرے دماغ میں ایک ناسور کی طرح چبھ رہی تھی اور مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی، مگر مجھے ابھی صرف اپنے اس کٹھن مستقبل کا سوچنا تھا جو سامنے کسی امتحان کی طرح کھڑا تھا۔ ایک دوپہر جب سورج آگ برسا رہا تھا اور میں اپنی اسی بنجر زمین پر بیٹھا کدھال سے پتھر نکال رہا تھا کہ اچانک گاؤں کی اس کچی اور ویران سڑک پر دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ میرے کانوں میں گاڑیوں کی بھاری پہیوں کی آواز آئی۔ میں نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے گردن گھما کر دیکھا تو وہاں کالے شیشوں والی تین بڑی اور انتہائی مہنگی گاڑیاں قطار میں چلی آ رہی تھیں۔ ہمارے اس غریب اور کچے گاؤں میں ایسی گاڑیوں کا آنا کسی عجوبے سے کم نہیں تھا۔
गांव के बच्चे और बड़े हैरानी से इन गाड़ियों के पीछे भाग रहे थे। मुझे लगा कि शायद कोई वडेरा या सरकारी अफसर आया होगा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो गाड़ियां सीधी मेरी इस बंजर और कटी फटी जमीन के बिल्कुल पास आकर रुक गईं। गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से कुछ सूटुड बूटुड और काला चश्मा लगाए हुए लोग बाहर निकले। उनके दरमियान एक उधेड़ उम्र का इंतहाई रौबदार शख्स था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती और चालाकी थी। उसने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और मेरी इस बंजर जमीन को ऐसे घूरने लगा जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को देखता है। मैं हैरानी से अपनी कदाल पकड़े उसकी तरफ बढ़ा। वो लोग जमीन की मट्टी को उठाकर देख रहे थे और आपस में किसी बहुत ही पेचीदा और पुरअसरार मौजू पर बात कर रहे थे। उनके हाथों में कुछ जदीद किस्म की मशीनें भी थीं, जिन्हें वो ज़मीन पर आकर कुछ चेक कर रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और मेरी इस ज़मीन पर क्या कर रहे हैं। उनमें से उस रौबदार शख्स ने मेरी तरफ एक तंजिया नज़र डाली और फिर उसके एक कारिंदे ने आगे बढ़कर कहा कि तुम इस ज़मीन के मालिक हो। मैंने इस बात में सर हिलाया तो उस रौबदार शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम शहर से आए हैं और यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। हमें तुम्हारी ये ज़मीन चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि इस कटी फटी और बंजर ज़मीन पर कोई फैक्ट्री कैसे लगा सकता है, जहाँ तक पहुँचने का सीधा रास्ता भी नहीं था। लेकिन अभी मेरी हैरानी ख़त्म नहीं हुई थी कि उस शख्स ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने अपने ब्रीफ केस से पैसों की एक गड्डी निकाली और कहा कि हम तुम्हें इस ज़मीन के मुंह मांगे करोड़ों रुपए देंगे। ये सुनकर मेरे कानों में सही सही होने लगी। करोड़ों रुपए, ये इतनी बड़ी रकम थी जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। मेरी वो ज़मीन जिसकी कीमत चंद लाख भी नहीं थी और जिसे चचा ने बेकार समझकर हमें दिया था, आज उसके करोड़ों लग रहे थे। ये बात गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई भागता हुआ वहां जमा होने लगा। मेरी माँ को भी किसी ने खबर दी तो वो भी दौड़ती हुई और हाँफती हुई वहां पहुंच गई। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जो ज़मीन हमारी बर्बादी का सबब बनी हुई थी, आज वह हमारी किस्मत बदलने वाली है। माँ की आंखों में खुशी और हैरत के आंसू थे। वह बार बार आसमान की तरफ देखकर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि उसने हमारे सब्र का फल दे दिया। खरीदारों ने फौरन गाड़ी के बोनट पर कागज़ रखे और मुझसे कहा कि जल्दी से दस्तखत करो और ये बयाना पकड़ो, बाकी ये रकम कल तुम्हारे बैंक में आ जाएगी। मैंने कांपते हाथों से कलम पकड़ ही लिया था कि अचानक पीछे से एक ज़ोरदार आवाज़ आई कि रुको, ये सौदा नहीं हो सकता। मैंने मुड़कर देखा तो भीड़ को चीरता हुआ मेरा चचा हांफता कांपता और पसीने में शराबूर वहां पहुंच चुका था। उसकी आंखों में एक ऐसी वहशियाना लालच और पागलपन था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसे जब खबर मिली कि उसकी छोड़ी हुई बंजर जमीन करोड़ों की निकल आई है, तो उसके सीने पर सांप लौट के होंगे। वो दौड़ता हुआ सीधा उस रौबदार शख्स के पास आया और बोला कि ये जमीन इस लड़की की नहीं है, इसका असल मालिक मैं हूँ। तुम ये सौदा मेरे साथ करोगे। ये सुनकर मैं और मेरी माँ सकते में आ गए। मैंने गुस्से से आगे बढ़कर चचा से कहा कि आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। यह जमीन पंचायत और पटवारी के सामने मेरे और मेरी माँ के नाम हुई थी और आपने खुद अपने कागजात दिखाकर वो फ्रंट वाली ज़मीन अपने नाम की थी। अब आप यहाँ क्या तमाशा कर रहे हैं? चचा ने एक भयानक और जहरीला कहकहा लगाया। उसका चेहरा लालच से सुर्ख हो रहा था। उसने इंतहाई उजलत में अपने कपड़ों की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और वहां से एक मुड़ी हुई पर्ची निकाली। ये वही पर्ची थी जिसे देखते ही मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। ये बिल्कुल वही पर्ची थी जो चचा ने अब्बा की तदफीन के बाद उस सुनसान और अंधेरे कब्रिस्तान में इस पुराने दरख्त के नीचे खड़े होकर लिखी थी और मुझे देखते ही घबराकर जेब में छुपा ली थी। आज वो पर्ची उसके हाथ में थी और वो उसे हवा में लहराते हुए पंचायत के लोगों और उन खरीदारों को दिखा रहा था। चचा ने चीखते हुए कहा कि देखो, ये मेरे भाई की आखिरी तहरीर है। इसमें उसका अंगूठा और दस्तखत मौजूद हैं। इस पर साफ लिखा है कि उसने मुझसे 15 लाख का कर्ज लिया था और अगर वो मर गया और कर्ज ना चुका सका तो ये पिछली बंजर जमीन भी मेरे नाम हो जाएगी। ये सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स का मुंह खुले के खुले रह गए। खरीदारों ने वो पर्ची चचा के हाथ से लेकर देखी। मेरी माँ, जो कुछ देर पहले खुशी से रो रही थी, वो भागती हुई आगे आई और उसने कांपते हाथों से वो पर्ची खरीदारों के हाथ से छीन ली। माँ ने जैसे ही इस पर्ची पर नजर डाली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, जैसे उनके जिस्म का सारा खून निचड़ गया हो। इस पर्ची पर मौजूद दस्तखत और अंगूठे का निशान बिल्कुल हूबहू मेरे अब्बा का था।
माँ को याद आया कि अब्बा ने एक बार किसी सरकारी काम के लिए एक खाली स्टाम्प पेपर पर अपना अंगूठा और दस्तखत किए थे, जो चचा के पास रखा था। या शायद उस रात जब अब्बा तड़प रहे थे और उनका जिस्म ठंडा हो चुका था, तो चचा ने उनके सरहाने से पानी की बोतल उठाने के बहाने अब्बा के बेजान अंगूठे को इस पर्ची पर लगा लिया था। ये सोचते ही मेरी माँ के हाथ से वो पर्ची छूटकर मिट्टी में गिर गई और वो एक दिलखराश चीख मारकर वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। मैंने भागकर माँ का सर अपनी गोद में रखा, लेकिन मेरा दिमाग उस वक़्त लावे की तरह उबल रहा था। मेरी आँखों के सामने कब्रिस्तान का वो अंधेरा और चचा का वो खौफज़दा चेहरा नाचने लगा। मुझे अब सारी गेम समझ आ चुकी थी कि चचा ने अब्बा के मरने के बाद उनकी बेजान हाथ का अंगूठा इस पर्ची पर लगाया था और फिर कब्रिस्तान में जाकर इत्मीनान से इस बार कर्ज की झूठी कहानी लिखी थी, ताकि अगर कभी इस बंजर ज़मीन की कीमत बढ़े तो वो उसे भी हड़प कर सके। ये एक ऐसी खौफनाक और गलीज़ साजिश थी जिसने इंसान और दरिंदे का फ़र्क मिटा दिया था। लेकिन वो खरीदार, जो दरअसल एक खतरनाक लैंड माफिया के लोग थे, उन्होंने अचानक अपने चेहरे बदल लिए और उस रौबदार शख्स ने ज़मीन से वो पर्ची उठाई और उसे गौर से देखने के बाद एक सर्द और ज़ालिमाना कहकहा लगाया। उसने चचा की तरफ देखा और बोला कि तो तुम इस ज़मीन के नए मालिक हो। चचा ने खुशी से सर हिलाते हुए कहा, जी साहब, मैं ही इसका इकलौता मालिक हूँ। ये औरत और लड़का झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे पैसे दें और ज़मीन का कब्जा ले लें। माफिया के उस लीडर ने अपने गार्ड्स को इशारा किया और पलक झपकते ही उन काले कपड़ों वाले गार्ड्स ने अपनी भारी बंदूकें निकालकर चचा और वहां खड़े गांव वालों पर तान ली। पूरे मजमे पर मौत की सी खामोशी छा गई। चचा के चेहरे की खुशी एक सेकंड में गायब हो गई और उसकी टांगें कांपने लगीं। माफिया के लीडर ने वो पर्ची अपनी जेब में डाली और चचा के बिल्कुल करीब आकर इंतहाई धीमी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोला, बेवकूफ़ इंसान, हम इन ज़मीन के सौदे नहीं करते, हम इन पर कब्ज़ा करते हैं। हम माफिया हैं और हम तुम जैसे छोटे चोरों को कच्चा चबा जाते हैं। अब ये ज़मीन हमारी है और ये पर्ची मेरे पास है। अगर तूने पुलिस या पंचायत के सामने ज़बान खोलने की कोशिश की, तो मैं ये पर्ची अदालत में दूँगा और साबित कर दूँगा कि तूने अपने भाई की जायदाद हड़पने के लिए जालसाज़ी की है। तेरी वो फ्रंट वाली ज़मीन भी ज़ब्त होगी और तू जेल की चक्की पीसेगा। चाचा ये सुनकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ-पाँव फूल गए थे और वो इन माफिया वालों के पाँव पकड़ने लगा कि मुझे मेरे पैसे दे दो, ये मेरी ज़मीन है, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन एक गार्ड ने ज़ोरदार लात मारकर चचा को पीछे गिरा दिया। लीडर ने हंसते हुए कहा, तूने अपने भाई के साथ धोखा किया और हमने तेरे साथ। हिसाब बराबर हो गया। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना सबको यहीं जिंदा दफन कर दूंगा। मैं ज़मीन पर बैठा अपनी बेहोश माँ का सर गोद में लिए ये सारा तमाशा देख रहा था। चचा की जिल्लत और रिसवाई मेरे सामने थी। इसने जिस लालच में आकर अपने भाई की लाश का सौदा किया था, आज उसी लालच ने उसे कुत्तों की तरह सड़क पर रोल दिया था। लेकिन माफिया के लीडर की नज़र अचानक मेरी बेहोश मां पर पड़ी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। उसने अपने कारिंदों को इशारा किया और बोला, यह ज़मीन कागज़ों में इस औरत के नाम है। अगर यह कल को पुलिस या अदालत के पास गई, तो हमारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। इसे उठाओ और गाड़ी में डालो और जब तक ये हमारे पास रहेगी, ये लड़का, ये पूरा गांव अपनी ज़ुबान बंद रखेगा। ये सुनते ही मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने अपनी बेहोश माँ को ज़ोर से अपने सीने से लगा लिया और चीख कर बोला, खबरदार जो किसी ने मेरी माँ को हाथ भी लगाया, मैं तुम सबकी जान ले लूँगा। लेकिन मेरे इस कच्चे और कमज़ोर वजूद की उन वहशी परिंदों के सामने क्या औकात थी। दो भारी भरकम गार्ड आगे बढ़े और उन्होंने मुझे भालों से पकड़कर जोरदार धक्का दिया। मैं दूर मिट्टी में जा गिरा। मेरे मुंह से खून निकलने लगा। उन्होंने नहायत बेरहमी से मेरी बेहोश माँ को बाजुओं से पकड़ा और घसीटते हुए अपनी काली गाड़ी की तरफ ले जाने लगी। मैं पागलों की तरह चीखता हुआ दोबारा उठा और उन पर झपट पड़ा। मैंने एक गार्ड की टांग पकड़ ली और उसे काटने लगा, लेकिन दूसरे ने अपनी बंदूक का बट पूरी ताकत से मेरे सर पर दे मारा। मेरी आंखों के सामने खून की एक सुर्ख चादर तन गई और मेरा सर फट गया। मैं दर्द से तड़पता हुआ ज़मीन पर गिर गया, लेकिन मेरी नज़रें अपनी माँ पर टिकी थीं, जिन्हें वो बेदर्दी से गाड़ी के पिछली सीट पर फेंक चुके थे। मैंने अपने खून आलूद हाथ आगे बढ़ाए और रोते हुए माँ को पुकारा, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में ही घुट गई। माफिया का लीडर मेरे पास आया और मेरे बालों को मुट्ठी में जकड़ कर बोला, तेरी माँ हमारे पास महफूज रहेगी जब तक तू खामोश रहेगा। जिस दिन तूने होशियारी दिखाने की कोशिश की, उस दिन तेरी माँ की लाश तुझे इस ज़मीन में गड़ी हुई मिलेगी। उसने मुझे एक ज़ोरदार ठोकर मारी और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ियाँ स्टार्ट हुईं
اور اس کے بھاری پہیے میرے کچے خوابوں اور میری دنیا کو کچلتے ہوئے دھول اڑاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ میں دھول اور خون میں لت پت سڑک کے بیچوں بیچ پڑا تھا۔ گاؤں والے خوف کے مارے اپنے گھروں میں چھپ چکے تھے۔ چچا وہیں ایک طرف منہ چھپائے بیٹھا تھا اور میں اپنی ماں کے اغوا کے اس دردناک منظر کو دیکھ کر اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ آسمان پر گرجدار بادل چھا گئے تھے اور بارش کے قطرے میرے خون میں مل کر زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ میری ماں جو میری آخری امید تھی وہ مجھ سے چھن چکی تھی اور اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا سوائے اس انتقام کی آگ کے جو اب میرے سینے میں بھڑک اٹھی تھی اور جو اس مافیا کو خاک میں ملانے تک بجھنے والی نہیں تھی۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے میرے خون اور مٹی میں مل کر ایک عجیب سا کیچڑ بنا رہے تھے۔ میں اس کیچڑ میں اونھے منہ پڑا اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میری ماں کی وہ آخری دل خراش چیخ میرے کانوں میں کسی گرم شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔ وہ گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی میری دنیا لوٹ کر جا چکی تھیں اور میں بے بس اور کمزور کیڑے کی طرح سڑک پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ میرے سر سے بہنے والا خون میری آنکھوں میں جا رہا تھا جس سے مجھے کچھ دھندلا اور سرخ نظر آ رہا تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ غریبی اور کمزوری اس دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ میرا وہ معصوم اور کتابوں میں گم رہنے والا ذہن آج کسی وحشی درندے کی طرح سوچنے لگا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زمین کا سہارا لیا اور لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا۔ میری نظر سامنے پڑی تو میرا سگا چچا قاسم مٹی میں لت پت بیٹھا اپنے بال نوچ رہا تھا۔ اس کا غرور، اس کی وہ مکارانہ ہنسی اور اس کی ساری چالاکیاں اس لینڈ مافیا کے جوتوں تک کچلی جا چکی تھیں۔ وہ زمین پر مکے مار کر دھاڑے مار کر رو رہا تھا کہ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ میں نے اپنے بھائی کا سودا کیا اور مجھے کچھ نہیں ملا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے اندر انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ میرا دل چاہا کہ میں جا کر اس کا گلا دبا دوں اور اسے وہیں مار ڈالوں، لیکن میرے اندر کی آواز نے مجھے روکا کہ اس کی موت اتنی آسان نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے میں مجھے پیچھے سے کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ میرا کزن حمید تھا جو گاؤں والوں سے خبر سن کر بدحواس ہو کر بھاگتا ہوا آیا تھا۔ حمید نے جب میرے خون آلود حالت دیکھی اور اپنے باپ کو مٹی میں رولتے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آیا اور مجھے سہارا دے کر بولا، یہ سب کیا ہو گیا؟ میں تو شہر کیا ہوا تھا؟ یہ خون کیسا ہے؟ اور چچی کہاں ہے؟ میں نے حمید کا کالر پکڑا اور اپنی زخمی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے چیخا، تیرے باپ کی لالچ نے میری ماں کو کھا لیا۔ اس نے مافیا کے ساتھ مل کر میری زمین کا سودا کیا اور جب انہوں نے اسے دھوکہ دیا تو وہ میری ماں کو اٹھا کر لے گئے۔ حمید یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس نے مڑ کر اپنے باپ قاسم کی طرف دیکھا جو پاگلوں کی طرح بڑبڑا رہا تھا۔ حمید کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے پہلی بار ایک شدید نفرت اور غصہ ابھرا۔ اس نے اپنے باپ کے پاس جا کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، ابا، تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے اپنے سگے بھائی کے یتیم کی چھت چھین لی اور اب چچی کی جان بھی خطرے میں ڈال دی۔ تو انسان ہے یا کوئی شیطان؟ چچا قاسم نے حمید کو دھکا دیا اور روتے ہوئے بولا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ داؤد سیٹھ مجھے ہی دھوکہ دے دے گا؟ میں نے تو اس فیکٹری والے کے ساتھ مل کر یہ سب اس لیے کیا تھا کہ کروڑوں ملیں گے، لیکن وہ سب کچھ لے گیا۔ حمید نے حقارت سے اپنے باپ کو دیکھا اور میرے پاس آ کر بولا، بھائی میں شرمندہ ہوں کہ میں اس ظالم کا بیٹا ہوں، لیکن آج سے میرا اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں۔ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن چچی کو ان ظالموں کی قید سے چھڑا کر لاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس داؤد سیٹھ کا اڈا کہاں ہے۔ وہ شہر کے باہر ایک پرانی بند پڑی شوگر مل میں اپنا ٹھکانہ بنائے ہوئے ہیں۔ میرے زخموں سے خون بہہ رہا تھا لیکن حمید کی بات سن کر میرے اندر ایک نئی طاقت آ گئی۔ میں نے اپنی قمیض کا ایک حصہ پھاڑا اور اپنے سر کے زخم پر زور سے باندھ لیا تاکہ خون رک سکے۔ میں نے حمید کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت اس اڈے پر جانا ہے۔ میری ماں ان درندوں کے درمیان اکیلی ہے۔ حمید نے اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور ہم بارش اور اندھیرے کو چیرتے ہوئے شہر کی طرف نکل پڑے۔ راستے بھر میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک طالب علم تھا۔ میں نے کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا تھا لیکن آج تقدیر نے مجھے کس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ مجھے اپنی ماں کو بچانے کے لیے موت کے منہ میں جانا پڑ رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے طویل اور کٹھن سفر کے بعد ہم شہر کے باہر اس ویران اور سنسان علاقے میں پہنچ گئے جہاں میلوں تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ سامنے ایک بہت پرانی اور خستہ حال شوگر مل کی عمارت نظر آ رہی تھی جس کے چاروں طرف اونچی دیواریں اور خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں۔ مرکزی دروازے پر وہی کالے کپڑے والے گارڈز بھاری اسلحے لیے پہرا دے رہے تھے۔ یہ مافیا کا اڈا تھا۔ ہم نے موٹر سائیکل کو کافی دور ایک کھنڈر کے پیچھے چھپایا اور دبے قدموں تاریکی کا سہارا لیتے ہوئے مل کی پچھلی طرف پہنچ گئے جہاں دیوار تھوڑی ٹوٹی ہوئی تھی۔
हमीद ने मुझे सहारा देकर दीवार पर चढ़ाया और फिर खुद भी अंदर कूदा। अंदर गुब अंधेरा था और कबाड़ का ढेर लगा हुआ था। हम पुरानी मशीनों के पीछे छुपते हुए उस मरकजी हाल की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ से रोशनी और कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि कहीं ये ज़ालिम उसकी आवाज़ न सुन लें। हम रेंगते हुए हाल के उस टूटी हुई खिड़की के पास पहुंचे और अंदर झांका तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे जिस्म का सारा खून जैसे जम गया। हाल के बीचों बीच एक कुर्सी पर मेरी माँ को रस्सियों से बांधा गया था और उनका सर लटका हुआ था और वो बेहोश थी। उनके चेहरे पर मिट्टी और आंसुओं के निशान थे। मेरी माँ की ये हालत देखकर मेरी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। मेरा दिल चाहा कि मैं अभी खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाऊं और उन सबको चीर फाड़ दूं। हमीद ने मुझे सख्ती से पकड़ लिया और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मेरे रोने की आवाज़ बाहर ना निकले। हाल में दाऊद सेठ एक बड़ी कुर्सी पर बैठा शराब पी रहा था और उसके कारिंदे इर्द गिर्द खड़े हंस रहे थे। दाऊद सेठ ने सिगार जलाते हुए एक जोरदार कहकहा लगाया और अपने एक खास कारिंदे से बोला, अरे देखा तूने, आज उस कासम की हालत, कैसे मैंने उस कुत्ते को उसी की बछाई हुई बसात पर मात दी। कारिंदे ने हंसते हुए जवाब दिया, सेठ जी, आपने तो कमाल कर दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि आपने उस कासम को इतनी जल्दी कैसे बेवकूफ़ बना लिया। दाऊद सेठ अपनी कुर्सी से उठा और एक ऐसी खौफनाक और भयानक सच बोला जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खींच ली और मेरे दिमाग की तमाम कड़ियाँ आपस में जुड़ गईं। दाऊद सेठ बोला, अरे वो कासम खुद एक लालची और गिरा हुआ इंसान है। उसे क्या मालूम था कि उस ज़मीन के नीचे पुराने दौर के नवादरात और ख़जाना दफन है। हमें जब रिपोर्ट मिली तो हमने कासम से रब्ता किया। मैंने उस कमीने को करोड़ों का लालच दिया और कहा कि अपनी बाइक को रास्ते से हटा दे। वो बड़ा ढीठ आदमी था, सीधी तरह बात मान नहीं रहा था और उसे रास्ते से हटाना ज़रूरी था। और लालच में अंधे कासिम ने मेरा साथ दिया अपनी ही भाई की जान लेने में। इसका एक सर्द कहकहा गूंजा और मेरी हड्डियों में उतर गया। वो अपने गुनाह की शर्मनाक दास्तान सुना रहा था। उस कासिम को लालच देना पड़ा कि फिर हम दोनों मिलकर ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। कासिम ने ही अपने भाई के पानी में वो बेरंग जहर मिलाया था, जिससे सीधा दिल का दौरा पड़ता है और शक भी नहीं चाहता। उसने पोस्टमार्टम तक बात पहुंचने न दी। कासिम ने गुस्ल और जनाजे की ऐसी जल्दी मचाई कि किसी को शक तक न हुआ और उसके बाद उस बेवकूफ़ कासिम ने रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाकर उस पर्ची पर अंगूठा लगाया जो मेरे लिए करना काफ़ी मुश्किल था और उसे कर्ज की कहानी बना दिया। वो समझ रहा था कि मैं उसे करोड़ों दूंगा, लेकिन दाऊद सेठ किसी का सगा नहीं होता। मैंने आज उस ज़मीन पर कब्जा भी ले लिया और उस लड़के की माँ को अगवा करके उन सब की ज़ुबानें भी हमेशा के लिए बंद कर दी। अब वो लड़का डर के मारे कभी पुलिस के पास नहीं जाएगा और कासम की तो वैसे ही बोलती बंद हो चुकी है। इसका क्या कहा फिर से फिजा में गूंजा। ये सारा बयान सुनकर मेरे कानों में साई साई होने लगी। मेरा दिमाग फटने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल में खंजर घोंप दिया हो। मेरे अब्बा की पूरी सरार मौत का सारा राज खुल चुका था। चाचा कासम और ये दाऊद सेठ मिलकर मेरे बाप के कातिल थे और उन्होंने मेरे बाप को तड़पा तड़पा कर मारा था। वो पानी वाली बोतल को छिपाना, जनाजे में उजलत और उस बच्ची का राज, सब मुझे समझ आ चुका था। मेरे अंदर का गुस्सा और नफरत एक ऐसे लावे में बदल गई जो हर चीज़ को जला देना चाहता था। मेरे हाथ से बेअख्तियार खिड़की के शीशे की तरफ बढ़ा कि उसे तोड़कर अंदर जाऊं और दाऊद सेठ की गर्दन अपने दांतों से चीर दूं, लेकिन उसी लम्हे मेरे मासूम लेकिन तेज दिमाग ने एक इंतहाई अक्लमंदाना फैसला किया। अगर मैं अंदर गया तो ये 10 मसल्ह गार्ड मुझे और हमीद को एक सेकंड में भून डालेंगे और मेरी माँ कभी भी जिंदा नहीं बच पाएगी। जज्बात से ज़्यादा अब मुझे अकल से काम लेना था। मैंने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और खिड़की की जाली से कैमरा सेट करके वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दाऊद सेठ अब भी अपनी फतह के नशे में चूर होकर अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा था। मैंने उसकी वो सारी गुफ्तगू जिसमें अब्बा के कत्ल का एतराफ़, चचा कासिम की गद्दारी और मेरी माँ के अगवा का ज़िक्र था, मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड कर ली। जब वीडियो महफूज हो गई तो मैंने हमीद का हाथ पकड़ा और उसे पीछे हटने का इशारा किया। हमीद मेरी आंखों में छुपी उस वहशत और दर्द को देखकर कांप रहा था, क्योंकि उसने भी अपने बाप के कातिल होने का सच सुन लिया था। हम दोनों इंतहाई खामोशी से मिल से बाहर निकले और मोटरसाइकिल के पास पहुंचे। हमीद ने मुझसे रोते हुए कहा, भाई, हम चच्ची को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हम उन्हें बचाएंगे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक सर्द और पथरीली आवाज़ में कहा कि अगर हम अभी अंदर गए तो हम दोनों मारे जाएंगे और माँ को कौन बचाएगा?
اب ہم ماں کو خود نہیں چھڑائیں گے، بلکہ یہ سچ وہ پولیس چھڑائے گی جس کا کام ظالموں کو پکڑنا ہے۔ ہم سیدھے پولیس کمشنر کے پاس جائیں گے کیونکہ اس علاقے کی عام پولیس سیٹھ داؤد کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پولیس رپورٹ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کمشنر نیک اور ایماندار آدمی ہوئے وہ ضرور ہمیں سنے گا، کیونکہ پولیس تو ان کی جیب میں ہوتی ہے، وہ ہماری کیا سنے گی؟ میں نے موبائل کو مضبوطی سے مٹھی میں دبا کر کہا، یہ ثبوت بولے گا تو کمشنر کو بھی سننا پڑے گا۔ ہم نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور رات کے پچھلے پہر شہر کے سب سے بڑے پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بارش رک چکی تھی، لیکن میرے اندر کا طوفان اب اپنے عروج پر تھا۔ ہم پولیس ہیڈ کوارٹر کے بڑے گیٹ پر پہنچے تو وہاں موجود گارڈز نے ہمیں روک لیا۔ ہماری حالت دیکھ کر وہ ہمیں کوئی بھکاری یا پاگل سمجھ رہے تھے، کیونکہ ہمارے کپڑے خون اور مٹی میں لت پت تھے اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے گارڈ سے کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت کمشنر صاحب سے ملنا ہے، میرے پاس ایک قتل اور اغوا کا ثبوت ہے۔ لیکن گارڈ نے مجھے زور سے دھکا دیا اور گالی دیتے ہوئے بولا، چل بھاگ یہاں سے۔ کمشنر صاحب کوئی تیرے یار ہیں جو رات کے اس پہر تجھ سے ملیں گے؟ صبح آنا رپورٹ لکھوانے۔ میں نے منتیں کی، ان کے ہاتھ جوڑے، لیکن ان پتھر دل محافظوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ یہ سیدھی طرح مجھے اندر نہیں جانے دیں گے۔ میں نے حمید کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ایک اشارہ کیا۔ حمید میری بات سمجھ گیا۔ اس نے اچانک ایک گارڈ کا گریبان پکڑا اور زور زور سے گالیاں دینے لگا، تم لوگ رشوت خور ہو، تم غریبوں کی نہیں سنتے۔ گارڈ کو غصہ آ گیا اور وہ سب حمید کو مارنے کے لیے اس پر پل پڑے۔ گیٹ پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ حمید ان سے گتھم گتھا ہو رہا تھا اور جان بوجھ کر ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور نظریں بچا کر گیٹ کے سائڈ سے اندر کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے کسی نے شور بھی مچایا، لیکن میں اپنی پوری طاقت سے اس شاندار عمارت کے کوریڈورس میں بھاگ رہا تھا۔ سامنے کمشنر کے دفتر کا بورڈ لگا تھا، جس کے باہر دو پولیس والے کھڑے تھے۔ میں نے رکنے کے بجائے چھلانگ لگائی اور سیدھا دروازہ توڑتا ہوا کمشنر کے دفتر کے اندر جا گرا۔ کمشنر صاحب جو ایک ایماندار اور سخت گیر افسر مانے جاتے تھے، وہ اپنی کرسی پر بیٹھے کوئی فائل پڑھ رہے تھے۔ اچانک میرے اس طرح خون میں لت پت اندر گرنے پر وہ ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی پستول نکال لی۔ باہر سے پولیس والے بھی بھاگتے ہوئے اندر آئے اور انہوں نے مجھے دبوچ لیا۔ کمشنر نے غصے سے چلایا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہے یہ لڑکا اور اسے اندر کس نے آنے دیا؟ پولیس والے مجھے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگے تو میں نے چیخ چیخ کر کمشنر کو پکارا، صاحب میری ماں کو بچا لیں، میری ماں کو وہ لینڈ مافیا والے مار دیں گے، میرے باپ کو بھی انہوں نے مار دیا ہے، خدا کے لیے میری بات سن لیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ میرے اس دردناک اور دل چیر دینے والے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ کمشنر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر پولیس والوں کو روکنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے مجھے قریب آنے کو کہا۔ میں نے ان کے پیروں میں گر کر ہوتے ہوئے سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح چچا نے مافیا کے ساتھ مل کر زمین ہڑپنے کی کوشش کی اور کیسے ابا کو مارا، اور اب میری ماں ان کے قبضے میں ہے۔ کمشنر نے میری بات سن کر حیرت سے کہا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ داؤد سیٹھ جیسا بڑا بزنس مین یہ سب کر رہا ہے؟ وہ تو شہر کا ایک معزز آدمی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا اور وہ ویڈیو پلے کر کے ان کی میز پر رکھ دی، جس میں داؤد سیٹھ سگار پیتے ہوئے میرے باپ کے قتل اور ماں کے اغوا کا فخری انداز میں اعتراف کر رہا تھا۔ کمشنر نے جیسے ہی وہ ویڈیو دیکھی اور ان کی آنکھوں میں ایک شدید غصہ اور حیرانی ابھر آئی، انہوں نے ویڈیو کو دوبارہ دیکھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ کوئی معمولی کیس نہیں، بلکہ شہر کے سب سے بڑے مافیا کا کچا چٹھا ہے، جو ایک غریب اور معصوم لڑکے نے اپنی جان پر کھیل کر نکالا ہے۔ کمشنر نے موبائل کو زور سے میز پر مارا اور اپنے ماتحت افسر کی طرف دیکھ کر گرجدار آواز میں بولا، ابھی اسی وقت ایلیٹ فورڈز کی 10 گاڑیاں تیار کرو، شہر کے چاروں راستے سیل کر دو اور اس شوگر مل کا محاصرہ کر لو۔ داؤد سیٹھ کو زندہ یا مردہ پکڑنا ہے، آج یہ مافیا ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا۔ کمشنر صاحب نے مجھے اپنے ہاتھوں سے سہارا دے کر اٹھایا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، تم ایک بہادر بیٹے ہو، تم نے جذبات کی بجائے عقل سے کام لیا۔ آج تمہاری ماں کو میں خود اپنے ہاتھوں سے اس درندے کی قید سے چھڑوا لاؤں گا، آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور کمشنر کے ساتھ باہر نکلا تو حمید کو پولیس والوں نے ہاتھ کڑیاں لگائی ہوئی تھیں۔ کمشنر نے اسے فوراً چھوڑنے کا حکم دیا اور ہم سب بھاری پولیس فورس کے ساتھ مافیا کے اس اڈے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے اندر کا ڈر اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اب میرے ساتھ قانون کی طاقت تھی اور مجھے یقین تھا کہ اب داؤد سیٹھ اور میرے چچا قاسم کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
इस तारीख रास्ते के सीने में अब इंसाफ का सूरज तुलू होने वाला था। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की कान फाड़ देने वाली आवाज़ों ने रात की इस भयानक और तारीख खामोशी को चीर कर रख दिया था, जिसने मेरे अब्बा की मौत का राज अपने अंदर छुपा रखा था। कमिश्नर साहब की क़यादत में एलियट फ़ोर्स की दर्जनों गाड़ियों ने उस पुरानी और खस्ता हाल शुगर मिल को चारों तरफ से घेरे में ले लिया था। नीले और लाल रंग की घूमती हुई तेज़ रोशनियों ने उस अंधेरे खंडर को दिन की तरह रोशन कर दिया था। मैं कमिश्नर साहब के बिल्कुल साथ वाली गाड़ी में बैठा था और मेरा दिल मेरे सीने में इतने ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी पसलियाँ टूटती हुई महसूस हो रही थीं। मिल के मरकज़ी दरवाजे पर खड़े माफिया के वो खूंखार गार्ड जो कुछ देर पहले मुझे कीड़े मकोड़े की तरह मार रहे थे, वो मेरी बेबसी पर हंस रहे थे। अब पुलिस की इतनी भारी नफरती देखकर बुरी तरह घबरा गए थे और उनके चेहरे पर मौत का खौफ तारी हो चुका था और उन्होंने अपनी भारी बंदूकें वहीं ज़मीन पर फेंक कर अपने हाथ ऊपर कर लिए थे। कमिश्नर साहब ने गाड़ी से उतरते ही गरजदार आवाज़ में हुक्म दिया कि इस इमारत के चारों तरफ घेरा तंग कर लो और कोई भी अंदर से बचकर निकल ना पाए। पुलिस के जवानों ने एक ज़ोरदार धक्के से वो पुराना लोहे का दरवाज़ा तोड़ दिया और हम सीधे उस मरकज़ी हाल की तरफ भागे, जहाँ मेरी माँ को बेदर्दी से बांध कर रखा गया था। अंदर दाऊद सेठ और उसके कारिंदे पुलिस को इतनी जल्दी अपने सर पर देखकर हड़बड़ा के थे। दाऊद सेठ, जिसके हाथ में कुछ देर पहले सिगार था, अब उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अख्फी दरवाजे से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन एलियट फोर्स के चाकू चौबंद जवानों ने पलक झपकते ही उस पर छलांग लगा दी और उसे और उसके गुंडों को ज़मीन पर औंधे मुंह लटाकर उनके हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। उसे उम्मीद न थी कि कमिश्नर खुद मौके पर पहुंच जाएगा। मैं दीवाना वार भागता हुआ हार के बीचों बीच अपनी माँ के पास पहुंचा, जो कुर्सी पर बेहोश पड़ी थी। उनका सर एक तरफ ढलका हुआ था और उनके कपड़े मिट्टी से हटे हुए थे। मैंने कांपते हाथों से उनकी मोटी और खुरदरी रस्सियां खोलीं और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसुओं का एक ऐसा तूफान बह निकला, जिसमें खुशी, दुख और फतह का एक अजीब सा एहसास शामिल था। कमिश्नर साहब ने फ़ौरन एक पुलिस वाले को पानी लाने का इशारा किया। मैंने माँ के मिट्टी से भरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे, तो उन्होंने कुछ देर बाद एक लंबी सांस लेते हुए आहिस्ता-आहिस्ता आँखें खोलीं। मुझे अपने सामने सही सलामत और ज़िंदा देखकर उनकी जान में जान आई और वो मुझसे लिपट कर फूट-फूट कर रोने लगीं। उनके आँसू मेरे सीने को भिगो रहे थे। मैंने उन्हें मज़बूती से थामा और दिलासा दिया कि माँ, अब रोने का वक़्त हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। हमने उन ज़ालिमों को शिकस्त दे दी है और अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दाऊद सेठ, जिसे पुलिस वालों ने गिरबान से पकड़ कर खड़ा किया हुआ था, अब उसका सारा गरूर और तकब्बुर खाक में मिल चुका था। वो माफिया का डॉन जो चंद मिनट पहले मेरे बाप के कत्ल का फखरिया एतराफ़ कर रहा था, अब कमिश्नर साहब के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि उसे माफ़ कर दें। वो मुँह मांगी रिश्वत देने की पेशकश कर रहा था, लेकिन कमिश्नर ने उसे एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि उसके मुँह से खून निकल आया और बोला कि तुम जैसे दरिंदों की माफ़ी सिर्फ मौत है, कानून बिकता नहीं है। मैंने अपनी माँ को सहारा देकर उठाया और हम उस वहशतनाक अमारत से बाहर आ गए। सुबह की ठंडी हवा ने हमारे चेहरों को छुआ। दूर मस्जिदों में फजर की अज़ानें हो रही थीं और आसमान पर एक नई उम्मीद और ज़िंदगी का सूरज तुलू होने वाला था। वो रात जो मुझ पर एक क़यामत बनकर टूटी थी, अब अपने अंजाम को पहुँच चुकी थी। माफिया के सारे लोग गिरफ्तार होकर कैदियों वाली गाड़ियों में ठूंसे जा चुके थे और हमारी वो कटी-फटी ज़मीन, जिसके नीचे करोड़ों का खजाना दफन था, अब मुकम्मल और कानूनी तौर पर महफूज हो चुकी थी। हम इंतहाई खुशी और इत्मीनान के साथ पुलिस की सख्त हिफाजत में अपने गांव वापस लौटे। मोहल्ले वाले जो कल रात के खौफनाक वाक़े से डरे हुए थे, हमें पुलिस की गाड़ियों में सही सलामत देखकर हैरान रह गए थे। मैंने अपनी माँ को सहारा देकर उनके कमरे में लटाया और उन्हें सुकून की नींद सुलाया और खुद अब्बा की उस पुरानी तस्वीर के सामने खड़ा हो गया, जिस पर मिट्टी जमी थी। मैंने तस्वीर साफ की। आज मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि मैंने अपने बाप की मौत का राज जान लिया था और उनके कातिलों तक पहुंच गया था। लेकिन मेरे अंदर की आग अभी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी, क्योंकि अभी मेरी जंग मुकम्मल नहीं हुई थी। अभी मेरे अपने खून यानी उस सांप चचा कासम का हिसाब बाकी था, जिसने पैसों के लिए अपने भाई को डसा था। अगली सुबह जब गांव में अभी पूरी तरह धूप भी नहीं फैली थी, कि पुलिस की दो गाड़ियां सायरन बजाती और धूल उड़ाती हुई सीधी चचा कासम के घर के दरवाजे पर आकर रुक गई। इन गाड़ियों की आवाज़ सुनकर पूरा गांव अपने घरों से बाहर निकल आया और मेरी माँ भी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई।
पुलिस वालों ने चचा के घर का लकड़ी का दरवाज़ा इतने ज़ोर से खटखटाया कि वो अपनी चौखट से हिल गया। चचा, जो रात भर माफिया के हाथों ज़लील होने के बाद दर्द और खौफ से अपने बिस्तर पर मुंह छुपाए पड़ा था, हड़बड़ा कर बाहर आया। पुलिस की वर्दियां देखते ही उसके चेहरे का रंग बिल्कुल फक हो गया। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं और उसकी टांगें कांपने लगीं। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर उसका कॉलर इंतहाई सख्ती से पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर से बाहर सड़क पर निकाल लिया और गरजदार आवाज़ में बोला, कासिम, तुम पर अपने सगे भाई के कत्ल और उसकी जायदाद पर जाली कागजात और अंगूठे लगाकर कब्जा करने का संगीन इल्ज़ाम है। ये सुनते ही चचा की बीवी यानी मेरी चच्ची धाड़े मार मार कर रोने लगी और नंगे पांव भागती ही बाहर आईं। चाचा कासम हाथ जोड़कर पुलिस वालों की मिन्नतें करने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, मुझे मत पकड़ो। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी एक न सुनी और उसे हथकड़ियाँ पहना दी। चची रोती हुई भागकर सीधी मेरे और मेरी माँ के कदमों में गिर गई और मेरे पाँव सख्ती से पकड़ कर रोने लगी कि बेटा, अपने चचा को माफ़ कर दो, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शैतान ने उन्हें अंधा कर दिया था। अगर ये बुढ़ापे में जेल चले गए तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा कज़न हमीद दर दर की ठोकरें खाएगा। तुम उन्हें पुलिस के हवाले मत करो। मैंने चच्ची को सख्ती से अपने पाँव से पीछे हटाया और मेरी आंखों में उस वक़्त कोई रहम नहीं था, क्योंकि मुझे अब्बा की वो नीली पड़ती हुई लाश याद आ रही थी। मैंने इंतहाई सर्द और पथरीली आवाज़ में कहा, चच्ची, जब मेरे अब्बा को इस ज़ालिम ने रात के अंधेरे में ज़हर देकर मारा था, तब उसका ज़मीर कहाँ सो रहा था? जब उसने मेरी माँ को माफिया के हाथों बिकने दिया और उन गाड़ियों में मेरी माँ को घसीटा जा रहा था, तब उसका खून का रिश्ता कहाँ था? उसने तो हमारे सर से छत छीनने के लिए अब्बा के मरने के बाद उनके बेजान हाथ का अंगूठा लेकर कितना बड़ा फराड किया। मैं उसे इस दुनिया में तो क्या, उसे मैशर भी कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं उस पर कत्ल का मुकदमा भी चलाऊँगा और फ्रॉड का केस भी करूँगा। उसे फांसी के फंदे तक पहुँचाना और उसकी गर्दन को टूटने देखना अब मेरी ज़िंदगी का वाहिद मकसद है। चाची धाड़े मार कर रोने लगीं और फिर मेरी माँ के पाँव पकड़ लिए कि भाभी, आप ही इसे समझाएं। आप तो बड़ी हैं कि अपने सगे चचा की जान लेना चाहता है। माँ का दिल चूंकि बहुत नरम था और वह दूसरी औरतों का दुख समझती थी, उन्होंने रोते हुए मेरे कंधे पर अपना कमज़ोर हाथ रखा और इंतहाई धीमी और मसलहत भरी आवाज़ में बोली, बेटा, जो होना था वो हो गया। तेरा अब्बा तो अब वापस नहीं आ सकते। हम गरीब और कमज़ोर हैं। हम इन अदालतों और कचहरियों के चक्कर नहीं काट सकते। और फिर ये तेरा खून है, इसे अल्लाह की रज़ा के लिए इसके हवाले कर दे और माफ़ कर दे। हमें कोई बदला नहीं लेना, हम अपनी ज़मीन मिलने पर ही खुश हैं। लेकिन मैंने माँ का हाथ पकड़कर मज़बूती से कहा, नहीं माँ, यह खूनी नहीं, ये एक दरिंदा है, जिसने पैसे की खातिर अपने सगे भाई की जान ली। अगर मैंने इसे माफ़ कर दिया तो अब्बा की तड़पती हुई रूह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं इसे इसके भयानक अंजाम तक पहुँचा कर रहूँगा। मुझे हर हाल में बदला लेना है और अदालत के कटहरे में इसे कड़ी सज़ा दिलवानी है। इतने में हमीद, जो रात भर मेरे साथ था और जिसने दाऊद सेठ का वो सारा एतराफ़ सुना था, वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और उसने अपनी माँ यानी मेरी चच्ची को बाजू से पकड़कर मट्टी से उठाया और इंतहाई गुस्से से बोला, माँ, तुम किस ज़ालिम के लिए रो रही हो? उस शख्स ने ना सिर्फ मेरे चचा को बेदर्दी से मारा, बल्कि मुझे भी सारी ज़िंदगी के लिए एक कातिल का बेटा बनाकर मेरे माथे पर कलंक लगा दिया। मैं उसका साथ कभी नहीं दूँगा। मैं अदालत में खुद उसके खिलाफ गवाही दूँगा, क्योंकि हक और सच का साथ देना मेरा फ़र्ज़ है। हबीब की ये बात सुनकर चचा कासम फूट-फूट कर रोने लगा। उसे आज सही मायनों में एहसास हो गया था कि आज उसकी अपनी सगी औलाद ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। चचा कासम को घसीटकर पुलिस मोबाइल में डाल कर ले गई और गांव वाले, जो कल तक उससे डरते थे, आज उसके मुंह पर थूक रहे थे। जिसका कुछ दिन पहले इस गांव में तूती बोलता था, आज वो एक आवारा कुत्ते की मौत मर रहा था। उसके बाद हमारी कानूनी जंग का एक तवील और कठिन सफ़र शुरू हुआ। मैंने शहर के एक इंतहाई ईमानदार और काबिल वकील को अपनी सारी कहानी बताई और वीडियो सबूत के तौर पर उसे दे दिए। वकील ने मेरा केस लड़ने का वादा किया, क्योंकि उसमें हक और सच की खुली गवाही थी और ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। अदालत में मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई तो शहर भर के मीडिया, सहाफ़ियों और आम लोगों की नज़रें इस केस पर जम गईं और दाऊद सेठ के माफिया ने अपने बचाव के लिए शहर के महंगे तरीन और चालाक वकील खड़े किए। उसे अब भी यह गरूर था कि अपनी बेपनाह दौलत और ताकत के बल पर वो ये जीत जाएगा, मगर वो ये बात भूल गया था कि खुदा जब जालिम को पकड़ता है
تو بعض اوقات ایک مچھر کے دانے سے بھی شکست مل جایا کرتی ہے۔ اور یہی سیٹ داؤد کے ساتھ ہونے والا تھا۔ اس کے وکیل ہائی پروفائل تھے، جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طرح میری بنائی ہوئی اس ویڈیو کو جعلی اور جھوٹا ثابت کر دیں اور مجھے ایک لالچی لڑکا ثابت کریں۔ لیکن میں ایک چٹان کی طرح ڈٹا رہا۔ عدالت کے اس بڑے اور پروقار کمرے میں جب جج صاحب نے کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا تو سب سے پہلے اس ویڈیو کلپ کو ایک بڑی اسکرین پر چلایا گیا، جس میں داؤد سیٹ اپنے غرور میں چور ہو کر مہنگا سگار پیتے ہوئے میرے باپ کے قتل کا تفصیلی اعتراف کر رہا تھا کہ کس طرح قاسم نے اسے زہر دیا تاکہ ہارٹ اٹیک سے قدرتی موت لگے۔ مزید تسلی کے لیے جج نے قبر کشائی اور لاش کا پوسٹ مارٹم کا آرڈر دیا۔ فیصلہ اسی بنا پر ہونا تھا۔ میری ماں میرے باپ کی قبر کھدائی کروانے کی بے حرمتی نہیں کروانا چاہتی تھی، مگر وکیل نے کہا کہ اگر واقعی ان کو زہر دیا گیا ہے تو یہ ہمارے حق میں ایک بہت بڑا ثبوت ہوگا۔ کیس کا رخ پلٹ جائے گا، ورنہ سیٹھ داؤد کا کچھ بھروسہ نہیں، وہ جج بھی خرید سکتا ہے۔ اگر ایک بار پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی تو جج بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ میں اور میری ماں مان گئے، کیونکہ باپ کو انصاف دلانا ان سب چیزوں سے بالا تر تھا۔ آخر وہ لمحہ آیا جب میرے باپ کو قبر میں سے نکالا گیا اور ان کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔ جس دن پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی، عدالت کے کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا اور داؤد سیٹھ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس کا رنگ بالکل فک ہو گیا۔ اس کے مہنگے وکیلوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد میرے وکیل نے اس قبرستان والی پرچی کا فرانزک ٹیسٹ عدالت میں پیش کیا، جس نے میرے دعوے کو 100% سچ ثابت کر دیا۔ ماہرین نے کٹہرے میں آ کر بتایا کہ پرچی پر موجود ابا کے انگوٹھے کا نشان اس وقت لگایا گیا تھا جب ان کے جسم میں خون کی گردش مکمل طور پر رک چکی تھی، یعنی ان کی موت واقع ہو چکی تھی، اور پرچی پر موجود روشنائی کی تاریخ اور کیمیکل بھی ابا کی موت کے کئی گھنٹے بعد کا ثابت ہوا۔ اس فرانزک رپورٹ نے چچا قاسم کی ساری مکاری کو جڑ سے اکھاڑ کر بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ میرا وکیل جج صاحب کے سامنے پوری طاقت سے گرج رہا تھا کہ مائی لارڈ، یہ صرف ایک قتل نہیں بلکہ انسانیت کی سب سے بڑی اور گناہنی تذلیل ہے۔ ایک بھائی نے چند پیسوں کی خاطر اپنے سگے بھائی کی لاش کا سودا کیا اور ایک خطرناک مافیا کے ساتھ مل کر ایک بے بس بیوہ اور یتیم کو سڑک پر لانے کی سازش کی۔ حمید نے بھی کٹہرے میں کھڑا ہو کر روتے ہوئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہی باپ کے خلاف گواہی دی اور کہا کہ میں نے خود اس داؤد سیٹھ کو رات کے وقت ہمارے گھر آتے دیکھا تھا۔ چچا قاسم کٹہرے میں سر جھکائے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اب ان مگرمچھ کی آنسوؤں کی قانون کے سامنے کوئی قیمت نہیں تھی، اور داؤد سیٹھ کا سارا غرور اور پیسے کا تکبر بھی ان لوہے کی سلاخوں کے پیچھے ٹوٹ چکا تھا۔ کئی مہینے تک چلنے والی اس تھکا دینے والی عدالتی جنگ نے مجھے ایک معصوم لڑکے سے ایک مضبوط اور بہادر انسان بنا دیا تھا۔ میں روز اپنی ماں کے ساتھ عدالت جاتا اور ابا کے قاتلوں کو ذلیل ہوتا اور پیشیاں بھگتتا دیکھ کر میرے سلگتے ہوئے دل کو ایک عجیب سی ٹھنڈک ملتی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا مجھے اور میری ماں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ فیصلے کے دن عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ باہر میڈیا کے کیمرے لگے ہوئے تھے۔ جج صاحب نے اپنے چیمبر سے نکل کر کرسی پر بیٹھتے ہی پورے کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور اپنا فیصلہ پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام ٹھوس ثبوتوں، گواہوں کی گواہی اور فرانزک رپورٹ کی روشنی میں یہ عدالت اس حتمی نتیجے پر پہنچتی ہے کہ داؤد سیٹھ اور قاسم نے مل کر ایک بے گناہ اور شریف انسان کا بے دردی سے قتل کیا ہے اور اس کے جائیداد ہڑپنے کے لیے انتہائی گناؤنی جعلسازی کا سہارا لیا۔ جج صاحب نے اپنا قلم توڑا اور ایک گونجدار آواز میں فیصلہ سنایا کہ مجرم داؤد سیٹھ کو اغوا، مافیا چلانے اور فرسٹ ڈگری قتل کے جرم میں 2 بار سزائے موت اور اس کی تمام جائیداد سرکار بضبط کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور مجرم قاسم کو اپنے سگے بھائی کے قتل اور جعلی دستاویزات بنا کر فراڈ کرنے کے جرم میں عمر قید با مشقت اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی عدالت کے کمرے میں تالیاں گونج اٹھیں۔ داؤد سیٹھ کے ہوش اڑ گئے، وہ دھاڑے مارنے لگا اور وہیں زمین پر گر پڑا، جبکہ چچا قاسم نے زور زور سے اپنا سر کٹہرے کی لوہے کی سلاخوں پر مارنا شروع کر دیا۔ اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا اور وہ رو رو کر معافیا مانگ رہا تھا کہ مجھے بچا لو، لیکن اب وقت بہت دور جا چکا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کا بے حد شکر ادا کیا، جس نے مجھ جیسے ایک کمزور یتیم کو اتنی بڑی طاقت اور مافیا سے لڑنے کی ہمت دی۔ میری ماں جو عدالت میں میرے ساتھ موجود تھیں، انہوں نے مجھے زور سے گلے لگایا اور ان کی آنکھوں سے خوشی اور مکمل سکون کے آنسو چھلک پڑے۔ حق اور سچ کی شاندار جیت ہو چکی تھی۔
ہم دونوں ماں بیٹا عدالت سے باہر نکلے تو کھلی اور تازہ ہوا نے ہمارے چہرے کو چوما۔ آج مجھے اپنے دل کی گہرائیوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ ابا کی روح کو بلا کر ہمیشہ کے لیے سکون مل گیا ہوگا۔ میں نے اس کٹی پھٹی لیکن قیمتی زمین کے اصلی کاغذات اپنے سینے سے لگائے، جو اب پوری طرح میری ہو چکی تھی، اور ہم ایک نئی خوشحال اور پرسکون زندگی کا آغاز کرنے کے لیے انتہائی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف لوٹ کے، جہاں اب کوئی مافیا، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی راستہ نہیں روک سکتا تھا، اور اندھیرے بادل چھٹ چکے تھے۔ عدالت سے حق اور سچ کی وہ عظیم الشان اور تاریخی فتح حاصل کرنے کے بعد جب میں اور میری ماں اس پرانی اور کٹی پھٹی زمین پر واپس آئے تو مجھے وہ بنجر مٹی بھی دنیا کی سب سے قیمتی خزانے جیسی لگنے لگی تھی۔ وہ زمین جس کے ایک ایک ذرے میں میرے باپ کے پسینے کی مہک اور ان کے ادھورے خوابوں کی راکھ دفن تھی۔ میں نے اس سخت اور پتھریلی مٹی پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے اپنے ہاتھوں میں بھر لیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس مٹی میں جذب ہونے لگے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے ابا کی روح اس زمین کے ذرے ذرے میں مسکرا رہی ہو اور مجھے دعائیں دے رہی ہو۔ اب ہمارا کوئی دشمن نہیں تھا۔ وہ لینڈ مافیا جس نے ہمارے سروں پر موت کی تلوار لٹکائی ہوئی تھی، اب قانون کی آہنی گرفت میں تھا، اور وہ چچا قاسم جس نے پیسوں کی خاطر خون کے رشتے کو ناکام کیا تھا، وہ جیل کی اندھیری کوٹری میں اپنی کیے کی سزا بھگت رہا تھا۔ میری ماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا سکون تھا جو سالوں کی اذیت اور دربدری کے بعد انہیں نصیب ہوا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم اس زمین پر محنت کریں گے اور اسے آباد کریں گے۔ میں نے دوبارہ سے کدال اٹھائی اور اس زمین کا سینہ چیر کر اس میں بیج بونے کا ارادہ کیا۔ میں روزانہ صبح سویرے اٹھ کر اس زمین پر جاتا اور سورج غروب ہونے تک وہاں سخت مشقت کرتا۔ میری ماں میرے لیے دوپہر کا کھانا لے کر آتی اور ہم دونوں ماں بیٹا اسی کچی زمین پر بیٹھ کر وہ سوکھی روٹی بھی ایسے کھاتے جیسے وہ دنیا کا سب سے لذیذ اور مہنگا کھانا ہو، کیونکہ اس میں اب کسی کا ڈر یا خوف شامل نہیں تھا۔ میں نے دن رات ایک کر کے اس زمین کے ایک بڑے حصے کو ہموار کر لیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میری یہ محنت ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ قدرت کو میری وہ محنت اور میری وہ لگن اتنی پسند آئی کہ اس نے میری قسمت کے وہ تمام بند دروازے ایک ہی جھٹکے میں کھول دیے جن کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ایک صبح جب میں زمین پر پسینے میں شرابور کام کر رہا تھا تو اچانک وہاں سرکاری نمبر پلیٹ والی کچھ بڑی گاڑیاں آ کر رکیں، اور ان میں سے کچھ اعلیٰ سرکاری افسران اور ماہرین ارضیات جدید مشینوں کے ساتھ باہر نکلے، اور انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بتایا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں اس علاقے کا تفصیلی سروے کرنے بھیجا گیا ہے، کیونکہ سیٹلائٹ اور خفیہ ارضیاتی رپورٹس کے مطابق اس پوری بنجر زمین کے نیچے انتہائی قیمتی اور نایاب معدنیات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ وہی ذخیرہ تھا جس کی بھنک اس خطرناک مافیا کو لگ چکی تھی، اور وہ اسے کوڑیوں کے بھاؤ مجھ سے چھیننا چاہتے تھے۔ سرکاری افسران نے جدید کیمروں اور ڈرلنگ مشینوں سے زمین کے مختلف حصوں کی کھدائی کی اور کئی دن تک مٹی کے نمونے لیبارٹری بھجواتے رہے۔ ایک ہفتے بعد وہ ایک حتمی اور سرکاری رپورٹ لے کر میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ قانون کے مطابق زمین کے نیچے سے نکلنے والی معدنیات پر ریاست کا حق ہوتا ہے، اس لیے حکومت اس زمین کو اپنی تحویل میں لے گی اور یہاں ایک بہت بڑا سرکاری پروجیکٹ شروع کیا جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے اور میری ماں کو اس زمین کی مارکیٹ کی ویلیو سے بھی کئی گنا زیادہ معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ سن کر میں اور میری ماں حیران رہ گئے۔ انہوں نے مجھے سرکاری کاغذات دکھائے جن پر کروڑوں روپے کے معاوضے کی رقم لکھی ہوئی تھی۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ میرے آنے والی کئی نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتیں تو ختم نہ ہوتی۔ وہ بنجر زمین جو کبھی ہمیں بھوکا مارنے کے لیے دی گئی تھی، آج سونا اگل رہی تھی۔ حکومت نے نہ صرف مجھے وہ بھاری معاوضہ دیا، بلکہ میری ایمانداری اور اس خطرناک مافیا کے خلاف میری اس بے مثال بہادری کو دیکھتے ہوئے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا مجرمانہ نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، حکومت نے مجھے پاکستان کے سب سے اعلیٰ اور ٹاپ کالج میں مکمل سرکاری اسکالرشپ پر پڑھنے کی پیشکش بھی کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ جیسے آسمان سے فرشتے اتر کر مجھے میرے صبر کا پھل دے رہے ہوں۔ میری ماں جو یہ سب سن رہی تھی وہ وہیں سجدے میں گر پڑی اور ان کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، تیرے ابا کا خواب پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ حکومت نے قانونی کارروائی کے بعد وہ معاوضے کی رقم ہمارے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دی، اور میں نے اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کو چھوڑ کر شہر کا رخ کیا، جہاں حکومت کی طرف سے مجھے اس شاندار کالج میں داخلہ مل گیا تھا جس میں پڑھنا کسی بھی عام انسان کے لیے ناممکن خواب ہوتا ہے۔
जब मैंने पहली बार उस कॉलेज का उजला सफ़ेद यूनिफ़ॉर्म पहना तो मुझे अपना वो पुराना और मिट्टी में अटा हुआ यूनिफ़ॉर्म याद आ गया। इसे चाचा कासिम ने अपने थप्पड़ों और धक्कों से गंदा कर दिया था। आज मेरे चेहरे पर कोई खून नहीं था और ना ही कोई बेबसी थी, बल्कि आज मेरे चेहरे पर एक अज़म और एक चमक थी। मैंने अपनी माँ के कदमों को छुआ और उनसे दुआ लेकर कॉलेज की तरफ कदम बढ़ाया। उस कॉलेज में मुल्क के सबसे अमीर और ताकतवर घराना के बच्चे पढ़ते थे, जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आते थे। शुरू में मुझे उनके दरमियान अजनबियत महसूस हुई। कुछ अमीर लड़कों ने मेरे देहाती पस मंज़र पर तंज़ भी किया, लेकिन मैंने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा मकसद उनसे उलझना नहीं था, बल्कि अपने बाप का ख्वाब पूरा करना था। मैंने दिन-रात किताबों में अपना सर खपा दिया। मेरी रातें जागते हुए गुज़रतीं और मेरी सुबहें किताबों के सफ़हात पलटते हुए होतीं। मैं लाइब्रेरी में सबसे पहले जाता और सबसे आखिर में बाहर निकलता। मैंने अपने दिल में एक ही मकसद बैठा लिया था कि मुझे एक आम अफ़सर नहीं बनना, बल्कि मुझे इस मुल्क का एक ऐसा काबिल और एक ईमानदार जज बनना है, जो मज़लूमों को इंसाफ़ दिला सके और ज़ालिमों का एहतसाब कर सके। क्योंकि मैंने खुद बेबसी और नाइंसाफ़ी का वो ज़हर पिया था, जो इंसान की रूह को मार देता है। मैं नहीं चाहता था कि कोई और यतीम लड़का किसी माफिया या किसी ज़ालिम चच्चा के हाथों सड़क पर रुले और उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने अगवा किया जाए। मेरा यह मकसद मुझे रातों को सोने नहीं देता था। मेरी माँ रात के पिछले पहर उठकर मेरे लिए चाय बनाती और जाए नमाज पर बैठकर मेरे लिए रो रो कर दुआएं मांगती। उनकी दुआएं मेरे कदमों को कभी डगमगाने नहीं देती थीं। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए और मेरी इस अनथक मेहनत और लगन का सफ़र पूरे 10 साल तक मुहित रहा। इन 10 सालों में मैंने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी तालीम पर सर्फ कर दीं। मैंने कानून की डिग्री आला तरीन नंबरों से पास की और आखिरकार वो दिन आ गया जब मैंने पाकिस्तान के सबसे मुश्किल और आला तरीन मुकाबले के इम्तिहान यानी सीएसएस और जुडिशल सर्विसेज के इम्तिहान में हिस्सा लिया। वो इम्तिहान मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था, लेकिन मेरे कलम में मेरे बाप की मेहनत और मेरी माँ की दुआओं की ताकत थी। जब रिज़ल्ट का ऐलान हुआ तो पूरे मुल्क के अखबारात और टीवी चैनल्स पर मेरा नाम गूंज उठा। मैंने उस इम्तिहान में पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन हासिल की थी और मुझे एक आला तरीन सरकारी अफसर और एक काबिल जज के अहदे पर फाइज कर दिया गया था। जब मैंने पहली बार जज का वो स्याह गाउन पहना और अपनी माँ के सामने गया तो वो मुझे देखकर अपने आंसू नहीं रोक सकी। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और रोते हुए कहा कि आज तेरे बाप की रूह को जन्नत में सबसे ज़्यादा खुशी मिली होगी। आज तूने उनका वो ख्वाब पूरा कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। मैंने अपनी माँ को अपने गले से लगाया और मैं खुद भी एक बच्चे की तरह रोने लगा। वह कुर्सी जिस पर बैठकर मुझे लोगों की किस्मत का फैसला करना था, वो मेरे लिए कोई ताकत का निशान नहीं थी, बल्कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया और बहुत जल्द पूरे मुल्क में मेरी ईमानदारी, मेरे इंसाफ और मेरी हक़ गोई के चर्चे होने लगे। मेरे दरबार से कोई भी मज़लूम मायूस नहीं लौटता था और बड़े से बड़ा ताकतवर ज़ालिम मेरे सामने काँपता था, क्योंकि मैं किसी की सिफ़ारिश या किसी के पैसे को ख़ातिर में नहीं लाता था। मैंने इन तमाम सालों में अपने माज़ी को कभी नहीं भुलाया और इस माज़ी का एक हिस्सा मेरा चाचा कासिम था, जो शहर की सबसे बड़ी और खौफनाक जेल की काल कोठरी में अपनी उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। मैं एक दिन सरकारी दौरे पर उस जेल में गया और मैंने जेल से ख़ास तौर पर उस कोठरी का रुख करने को कहा, जहाँ कासिम कैद था। जब मैंने उन मोटी लोहे की सलाखों के पीछे अंधेरे में झाँका, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कासिम, जिसका कभी पूरे गाँव में तूती बोलता था, वो अपने गरूर में ज़मीन पर पाँव नहीं रखता था। आज वो हड्डियों का एक कमज़ोर ढांचा बन चुका था। उसके बाल और दाढ़ी उलझे हुए और सफ़ेद हो चुके थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके जिस्म पर मैल की तहें जमी थीं। वो अपनी कोठरी की दीवारों से बातें कर रहा था और उसका दिमाग इस तन्हाई और पछतावे के अज़ाब ने मुकम्मल तौर पर मऊफ कर दिया था। वो बार-बार अपने काँपते हाथों को देखता और कहता कि इन हाथों ने खून किया है। ये हाथ गलीज़ हैं, इन्हें काट दो। उसकी ये मजनूनाना हालत देखकर मुझे उस पर कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी किस्मत पर शदीद तरस आया कि इंसान पैसे के लालच में कितना गिर जाता है कि वो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर बैठता है। जेलर ने मुझे बताया, ये शख्स रातों को उठकर चीखता है और अपने मरे हुए भाई से गिड़गिड़ाकर माफ़ियाँ माँगता है, लेकिन अब उसकी माफ़ी का वक़्त बहुत दूर जा चुका था। कुदरत ने उसके तकब्बुर को ऐसी इबरतनाक सज़ा दी थी, जो रहती दुनिया तक एक मसाल बन गई थी।
दूसरी तरफ गाँव में मेरी चच्ची की हालत भी काबिल रहम थी। वो गाँव के उसी पुराने घर में एक इंतहाई सादा और पछतावे से भरी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। उन्होंने अपना सारा गरूर और ज़ेवर बेचकर गुज़र-बसर करना शुरू कर दिया था। उन्होंने गाँव वालों से मिलना-जुलना छोड़ दिया था और वो सारा दिन जाए नमाज़ पर बैठकर अपने शौहर के गुनाहों की माफ़ी माँगती रहती थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा और रोशनी उनका बेटा हमीद था। हमीद ने अपने बाप के गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर नहीं डाला, बल्कि उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना रास्ता खुद बनाया। हमीद ने शहर जाकर मेहनत मज़दूरी की और साथ-साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो अपनी काबिलियत के बलबूते पर एक सरकारी स्कूल में एक इंतहाई काबिल और मेहनती उस्ताद बन गया। हमीद ने कभी किसी हराम के पैसे को हाथ नहीं लगाया और उसने गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देना शुरू कर दी, ताकि कोई और बच्चा जहालत की वजह से मुजरिम न बने। उसने अपनी माँ को भी एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी दी। हमीद और मेरी दोस्ती आज भी वैसे ही थी जैसी बचपन में हुआ करती थी। हम दोनों में कोई फासला या अना नहीं थी। हमीद अक्सर छुट्टियों में मुझसे मिलने मेरे दफ्तर आता और हम घंटों बैठकर अपने मासी की तलख और मीठी यादें ताज़ा करते। हमीद हमेशा मुझसे रोकर कहता कि भाई, तूने जो किया वो हक था और मुझे फ़ख्र है कि तूने मेरे बाप को उसके गुनाहों की सज़ा दिलवाकर मुझे एक हराम की ज़िंदगी से बचा लिया। आज मैं शहर के एक इंतहाई खूबसूरत और बड़े पोश इलाके में एक बहुत बड़े और शानदार घर में अपनी माँ के साथ एक पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इस घर के लॉन में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और मेरी माँ एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर उन फूलों को देखती रहती है और उनके चेहरे पर अब कोई दुख या कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि उनकी आंखों में एक ऐसा सुकून होता है जो एक फातिहा माँ की आंखों में होना चाहिए। हमारे घर के सबसे खूबसूरत कमरे में दीवार पर मेरे अब्बा की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है, जिसके गिर्द ताज़ा फूलों का हार हर वक्त मौजूद रहता है। मैं हर रोज़ सुबह अपने दफ्तर जाने से पहले और रात को वापस आने के बाद उस तस्वीर के सामने खड़ा होता हूँ और अब्बा की उन मुस्कुराती हुई नज़रों में देखकर उन्हें बताता हूँ कि अब्बा, आपका बेटा आज भी आपके उन खुरदरे हाथों का मान रखे हुए हैं। आपका वो सफ़ेद यूनिफ़ॉर्म का ख्वाब आज एक काले और पुरवकार गाउन में बदल चुका है और आपकी वो छोड़ी हुई बंजर ज़मीन आज हमारी ज़िंदगियों को सोना बना चुकी है। अब्बा की वो तस्वीर मुझे देखकर यूँ मुस्कुराती हुई महसूस होती है, जैसे वो मुझसे कह रहे हों कि शाबाश मेरे शेर, मुझे तुझ पर फ़ख्र है। और यूँ दुखों, अज़ियतों और आज़माइशों से भरी मेरी ये तवील कहानी अपने एक इंतहाई खूबसूरत, पुरसुकून और इबरत आमोज़ अंजाम को पहुँच गई, जहाँ सच की रोशनी ने झूठ और ज़ुल्म के हर अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।